37 years old woman who had kidney transplant 4 years ago. She is 12 weeks pregnant, had has been uncomplicated so far. This is a structured discussion, and your examiner will lead you the discussions by 4 questions. Um, Madam, I have gone through the scenario. Should I proceed? Yes. What information you would like to take from this patient? Madam, after a mutual introduction, I will reconfirm the given biodata. Then I would like to ask from the patient that what was the disease of the patient that she has to undergo for the renal transplant, and how was the surgery? Any notes available? Any complication during the surgery or after the surgery? And then I would like to ask from the patient any history of then I would like to ask from the patient um, uh, that any history of any history of fever so far, urine output, how's the urine output, what is the color of her urine, any pain in her legs, any lower abdominal pain or flank pain, any swelling around her eyes, and then um, what medications she is taking so far, and when were her last visit to her doctor, and when were her last any her as already given in the scenario that she that her I would like to ask that any recent hospital admissions because of her disease in the hospital, any recent hospital admissions. And as she is 12 weeks pregnant, so I would like to ask, is she a booked patient so far? Any dating scan done so far? And any history of folic acid? Any history of PV bleeding? And uh, and any madam um, and does her physician knows about her pregnancy, or her surgeon, renal surgeon? Okay. Anything else in the assessment before management? Um, any change in her medication? Okay, you done with history? Madam, I've done with the history. Move on to the examination and investigations. How will you evaluate your patient? Then moving on to the examination, I would like to see the general look of the patient, her body mass index, her vitals, her blood pressure, her pulse, her temperature, her respiratory rate. Then, then and her any pedal edema or a generalized edema, then thyroid, breast, and chest examination. Then I would like to proceed for the thyroid, breast, and chest examination, and then moving on to the investigations, I would like to proceed for the baseline investigations, which are the blood group with Rh factor, complete blood count with date, including the hemoglobin, total leukocyte count, and platelets. Then hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies, anti-HIV, and anti-HIV, and then fasting blood sugar levels, any or 1 hour postprandial levels. Then urine complete examination for pus cells, protein, and sugar. Then moving on to the specific investigations she has done so far, which includes renal function tests, blood urea, and serum creatinine, and any dating scan done for the number of the fetus, crown implant, and viability of the fetus, and knuckle translucency. And Okay, manage your patient now, from now onwards. then
As my patient is has madam, any positive findings up till so far? No. Now Okay. counsel this patient about the risk associated with this pregnancy and how are you going to take care of her pregnancy. Okay, my patient is 12 weeks pregnant. She's 37 years of age, and up till so far, her pregnancy is uncomplicated. Then I will counsel my patient that this is a high risk pregnancy, and I will involve multidisciplinary team in which I will involve my senior obstetrician, her renal transplant surgeon, and and a nephrologist and hematologist. Then I will explain about the maternal risk and the fetal risk which are associated with the renal transplant, which includes. I will counsel her that if the dose of the medications are low and 2 years have been passed, then we will discuss with her nephrologist for the conception. But up till so far, her pregnancy is uncomplicated. We will give her folic acid, 5 milligram. We will start her Loprin, 75 milligram, and then after this, I will also counsel my patient that there are risks of preeclampsia, hypertension. Preeclampsia is 40% in these pregnancies in patients with a renal transplant. Hypertension, risks of anemia, UTI, and risk of infections because of poor immunity, and the babies are at risk of and there are risk of graft rejection, which is 5%, and there's risk of deterioration of the renal functions, which are 15%, and babies are at risk of low birth weight and FGR, and patients are at risk of preterm deliveries. But for this purpose, we will involve her. For this purpose, we will involve multidisciplinary team. Then, after starting her medications, I will review the medications of the patient in liaison with the multidisciplinary team. I will prescribe her those medications which are safe, which includes tacrolimus, azathioprine, and prednisolone. And after this, at 12 weeks, if dating scan is not done, then I will proceed for the dating scan, including knuckle translucency. Then at booking, I will screen for UTI and bacterial vaginosis, because they are at risk of infections. Then after this, I will then perform her anomaly scan at 18 to 24 weeks of gestation. I will then um, at from 24 weeks of gestation, I will do her growth scan and umbilical artery Doppler. I will do her renal function test 4 weekly at every antenatal. From the second trimester, I will do her 2 weekly antenatal visits. On every antenatal visit, I will check her blood pressure, urine complete examination, and protein urea, and I will check the compliance of the medication in liaison with multidisciplinary team. And uh, then at 32 weeks, I will give a steroid cover to my patient. I will take my patient um, um as close to the term as possible. And um, डॉक्टर पलवशा, मैंने उससे पूछा ही नहीं उसकी पैरिटी और लास्ट बॉर्न और वो सारा कुछ मैंने पूछा ही नहीं Okay. फॉर द मोड If ऑफ डिलीवरी. if this patient comes in spontaneous labor, then how are you going to manage this patient? At how much weeks? At term, she has presented with spontaneous labor at term. At term, if the patient presented to me, I will involve multidisciplinary team, um, and I will review her investigations. If not done properly, if not previously done, then I will proceed for her renal function tests, and I will perform her CTG, her scan, and then I will
proceed for I will assess her Bishop score. Then I will proceed for normal vaginal delivery, because spontaneous vaginal delivery, we can proceed for spontaneous vaginal delivery if CTG is reactive, and scan everything is on scan. Liker is Liker is क्या कहना चाहिए Time is up, Sumbul. What are the important things regarding this patient for the management of labor? 1, 2, 3. involvement of the multidisciplinary team. We will Okay, proceed done. for Next. CTG and scan. Then we will proceed for spontaneous vaginal delivery. In spontaneous vaginal delivery, we will give her IV hydrocortisone, as she's already taking oral prednisolone. So If we'll she proceed for taking, IV or if she hydrocortisone would have been taking. if she would have been taking Okay. How much dose? 100 to 200 milligram किस चीज का? IV hydrocortisone. Okay. डॉक्टर पलवशा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो ना, उसके साथ भूल गया है मुझे. Okay. Are you going to take care Then of her in the postpartum period? और डॉक्टर पलवशा, इसमें ये भी था कि ऑन गिविंग एपिजियोटमी इट शुड बी गिवन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्राफ्ट. Okay. Can you provide rationale? Can you give me reason why you're giving on opposite side? ये तो मुझे मैं ना कोई Did एग्जाम. you ask in this patient what side of kidney is transplanted to her? No, Dr. Palvasha, I have not asked. Do you know what side kidney is she has been transplanted? So you will choose the opposite side. Are you getting? No, I have not asked. Okay. Do you think so? It is important when you are going to say opposite episiotomy. हाँ जी, Opposite हाँ side. जी, ठीक है. ठीक है. चलो. You done? Postpartum तो करो इसको. And postpartum, I will counsel my patient for analgesia, antibiotics, contraception, breastfeeding. In contraception, I will counsel my patient for the long-acting reversible contraception, and at 6 weeks I will refer my patient to the nephrologist. And in next pregnancy, healthy timing and spacing, and early booking. And I will start and low molecular weight heparin in liaison with the hematologist. And So पलवशा, according मुझे to ना लो you, low मोलिकुलर वेट molecular हेपरिन weight मैं heparin बोल is रही हूँ, लेकिन only मुझे low molecular weight heparin is only important in the postpartum period. एग्जैक्टली पता नहीं है. पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस. मतलब मैं भी ना ये मेरा मैं अभी पढ़ रही थी आपकी ये वाला स्ट्रक्चर ना, मेरा डिस्कशन एसएलई चल वाला रही है प्रिपेयर था जनता. आपकी फुल. स्ट्रक्चर डिस्कशन चल रही है. यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाइक दिस इन बिटवीन. Answer me. ओके. Do you think so? VTE prophylaxis is important in antenatal period as well. Patient is at risk of thrombosis. These patients, so prophylaxis in liaison with the hematologist should be given in these patients. Okay. So you will say, I will do VTE risk assessment right now. ठीक है? And BT throughout assessment. her pregnancy at each antenatal visit and in the postpartum period as well. ठीक है? चलो अब आ जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं. जी. सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पे आते हैं. हिस्ट्री में you missed about for how long she is married, her last menstrual period and what parity. क्योंकि parity तो नहीं दी गई ना यहाँ पे. ठीक है? पैरिटी ये बायोडाटा तो टोटली आपने मिस कर दिया. फिर
आपकी हिस्ट्री आ गई ट्रांसप्लांट रिलेटेड, वो आपने सारी बातें पूछ ली। फॉर हाउ लॉन्ग शी हैज बीन ट्रांसप्लांटेड दिस किडनी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अप टिल सो फार उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गई, वो मेड्स क्या ले रही है, उसकी मेड्स में कोई चेंजिंग की गई, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, वो हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुई, उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन तो नहीं हुआ इस 4 सालों में, और उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, कोई सिस्टमिक कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई उसका कोई और सर्जरी तो नहीं हुई, उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑप्स हिस्ट्री ये वाली सारी इंपॉर्टेंट थी। और किडनी की साइड तो पूछ लो, किस साइड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको पता तो हो पूरे सिनेरियो में कि उसका राइट साइड हाँ का जी। किडनी ट्रांसप्लांटेड है या लेफ्ट साइड का। तो दिस इज द बिग ब्लंडर एंड फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग। हो सकता है आपको हाँ जी, साइड ठीक यहाँ ना दी, मैं है। लिखने लगी थी पहले साइड, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के नहीं लिखी कि अगर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट लिखा हो तो यू शुड आस्क, डॉक्टर पलवशा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही मेरी आवाज? जी मैम। ओके, यस बोल, मैम आ रही है। आपको क्यों नहीं आ आ रही रही है। फिर? अच्छा, आपकी हिस्ट्री तो पता सो नहीं फार, डॉक्टर पलवशा आवाज क्यों। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, ब्रेक आपके हो रही थी इंटरनेट में आवाज। कोई इशू होगा क्योंकि बाकी सबको आ रही है आवाज, ठीक है ना। चले, हाँ जी। आपने मोटी मोटी तो सारी हाँ जी। फोकस हिस्ट्री ले ली थी इस पेशेंट की, लेकिन मेडिसिन का बार बार आप पूछ रही थी। एक बार जब आपने बोल दिया कि आप मेडिसिन पूछेंगी कौन सी ले रही है, व्हाट डोज, एंड इफ द मेडिसिन आर बीइंग चेंज्ड और नॉट, ठीक है, are they safe in pregnancy or not, I will inquire about it. If they need any changes, then I will do the changes in liaison with her nephrologist. ठीक हो गया, ये हो गया। और प्री प्रेगनेंसी हाँ उसने जी। दिखाया है नहीं दिखाया, ये सारी चीजें आपने पूछ ली। बायोडाटा वाली आपने चीज जो है ना वो ज्यादा थोड़ी मिस कर दी थी, सॉरी। वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अब मैनेजमेंट पर आ जाओ। मैनेजमेंट हाँ में जी। आपने एक चीज की जो मैंने नोट करी, आप उसकी फीटर को, आप जब उसको मैनेज कर रही थी ना, यू यू सेड दैट यू विल टेल हर द इम्प्लीकेशंस, इट्स इम्प्लीकेशन इन द प्रेगनेंसी, लेकिन वो आपने कॉम्प्लिकेशंस उस वक्त बताई नहीं, ठीक है। फिर आप ना उसकी मेडिसिन हाँ पर जी। चली गई कि इफ शी वो हैज इज टेकिंग लो डोज एंड मेडिसिन सेफ, फिर आपने इस तरीके से ना अपना कोहेरेंस और कोहेजन और सीक्वेंस सारी ब्रेक कर दी अपनी डिस्कशन की, मैनेजमेंट की। फिर आपने कॉम्प्लिकेशंस अपनी बताई आपने, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वो आगे आप नीचे चली जाके गई, मुझे बाद सुनो, में फिर बताएंगे। आपने नीचे जाके बताई, दिस इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। जब आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करी हो ना, उसी वक्त आप जो ठीक है है। करो। और फिर आपने ये जो आपने ब्रेक किया, इसमें आपने वर्ड्स बोले, आई विल डिस्कस विद हर अबाउट द कंसेप्शन, वो तो कंसीव करके आई हुई है। तो मुझे नहीं समझ आई कि आप उस वक्त क्या थॉट हाँ प्रोसेस था, जी। कि आप उसको प्री कंसेप्शन पे एकदम ले गई, लो डोज और सेफ मेडिसिन, फिर आपको याद आया कि मैंने इसको कॉम्प्लिकेशंस बतानी। अच्छा, वीटी प्रोफिलैक्सिस थ्रू डॉक्टर आउट पलवशा, एंटीनेटल ये मैंने पीरियड। ना उस तरह याद किया। सुन लो, मैं भूल जाती हूँ, मेरा पहले फीडबैक पूरा सुन लो, फिर बाद में आप बोलना, ठीक है। वीटी प्रोफाइलैक्सिस आपने थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड आपने नहीं, जो जो चीजें देखो, आपकी जो एम है ना थ्रू आउट द एंटीनेटल पीरियड क्या है, पेशेंट को ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, पेशेंट की किडनीज फंक्शन टेस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज रहे, पेशेंट का बीपी मैं मॉनिटर करूंगी, मैं एम ऑफ ब्लड प्रेशर वुड बी लेस देन 140/90, ठीक है। मैं उसका कितना फ्रीक्वेंट मैं उसको एंटीनेटल विजिट्स पे बुलाऊंगी और उस एंटीनेटल विजिट पे मैं क्या क्या करूंगी, ठीक है। और दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ anemia and recurrent urinary tract infection, so I will repeat my patient's urine analysis 4 weekly every time she will come to me, ठीक है, हाँ जी। सही है। And I will keep हाँ in जी। license her nephrologist throughout the pregnancy. फिर डिलीवरी के दौरान जो लेबर की मैनेजमेंट थी वो मैंने आपको करेक्ट करवा दी, वो तो मैंने आपसे पूछ ली कि लेबर में क्या क्या चीज़ों का आप ख्याल करेंगे। और फिर मोड ऑफ डिलीवरी की बात आई तो फिर आपने बोला कि मैंने तो पैरिटी नहीं पूछी, उसकी प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरीज नहीं पूछी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम्म। इट्स टोटली अनफॉरगिवेबल, ठीक है। हाँ जी। अगर ये सीक्वेंस आपके ब्रेक होंगे, हैफेजर्ड आप जाएंगी, इट मींस यू आर नॉट, हम्म। you do not have clarity about the scenario and about managing your patient.
बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। अब बताओ आप क्या बता ठीक। रहे थे, आपने इसको कैसे तैयार किया है? ये मैंने ना प्री कंसेप्शन, चाहे ना आप कहा पी, प्री कंसेप्शन के साथ पेशेंट आई हुई है और वो फिर आपके साथ डिस्कस करने आई है। मैंने इस तरह से याद किया हुआ था और उसमें ना मुझे कुछ चीज़ों की में ना क्लैरिटी नहीं थी कि पेशेंट को ना, एक मिनट डॉक्टर पल्लवी, मैंने ना ये टाइम ना बच्चे मुझे इस टाइम इतना तंग करते हैं इसलिए मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। एक मिनट, मुझे 2 मिनट देंगे, मैं अपने बेटे को बाहर भेज दूँ। कहाँ आप 1 मिनट बाहर जाएंगी? तो मुझे नहीं पता। ये ना मुझे था कि ये हम, क्योंकि पेशेंट थ्रोम्बोसिस के रिस्क के साथ होती है ना, तो इसमें हमने वीटी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में इसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देना है या नहीं, मुझे वो था। इसीलिए फिर मैंने वो वाली बात नहीं डाली, सिर्फ इसको एस्पिरिन और उस पे डाला, फॉलिक एसिड और पे आप डाला थ्रू रिस्क आउट। असेसमेंट तो और करोगे ना चंदा? इसको क्या कहना है कि आई विल डू वीटी असेसमेंट थ्रू यस, आउट द प्रेगनेंसी यस, एंड बस, और कुछ epidemiology। नहीं भी ना कहूँ। और दूसरा वो मैंने प्रोटीन यूरिया और ब्लड प्रेशर का मैंने 2 वीकली आपको कहा है उसमें मैनेजमेंट में, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा हैफ एजड हो गया, मैं भूल गई, इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो अपना जो है ना, इसको सीक्वेंस को करेक्ट करो। ये तो बेसिक हाँ चीजें जी। हैं। जो बायोडाटा है उसी में आपने एलएमपी, फॉर हाउ लॉन्ग शी इज मैरिड, एंड लास्ट बेबी बोर्न, ठीक है, ये तो सारी चीजें आपने तभी जी। पूछ लेनी। फिर ऑप्स टेम्पलेट्स भी आपने कुछ मिस किए हैं, तो वो जब हाँ टेम्पलेट्स भी जी। आप मिस करोगे तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जस्ट गो विद द सीक्वेंस और उसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड फोकस्ड हिस्ट्री लेती रहें, तो आपसे ये वाली गलती नहीं होगी कि जब आप डिलीवरी पे पहुंचेंगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैंने तो पूछा ही हाँ नहीं। जी, मैंने मेडिकल हिस्ट्री नहीं मैम पूछी ये और जो मैंने सर्जिकल हिस्ट्री फिर भूल गई। मैंने उस दिन डॉक्टर कुरत को भी प्रेजेंट किया था, मैं फिर भूल गई थी। हालांकि मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं और मैं जब पूछने लगी हूँ तो देखो, मैं भूल गई। नोट्स की बात नहीं है, नोट्स आपको दुनिया जहान के कहीं से भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी गूगल करोगे ना, तुम्हें क्रिस्प हिस्ट्रीज और सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है बोलने की। आपको कोई सा भी सिनेरियो आ सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्री प्रेगनेंसी है। मैंने इसलिए प्री प्रेगनेंसी नहीं हम्म। डाला कि वो तो तुम सबको आता है और मोस्टली प्रैक्टिस ही हाँ हम वो जी, करते हैं। ठीक है ना? कर रहे होते हैं। ये कुंजी का सिनेरियो है, तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग डॉक्टर नौरीन के साथ कर रहे हो। लेकिन कुंजी में पहला क्वेश्चन प्री प्रेगनेंसी का था। मैंने वो खुद जानबूझ के प्री प्रेगनेंसी वाला मैंने नहीं किया, क्योंकि मोस्टली हम उसी पर ही चलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। वो फिर जब आ जाएगी तब भी तो सीक्वेंस लेके आना चाहिए ना हमें आगे, कि जब वो प्रेग्नेंट होके आ गई तो फिर मैंने किस किस चीज का ख्याल रखना है, कैसे मैंने उसको मैनेज करना है। समझ रहे हो? हाँ जी, मैम ये ठीक। जो आपने एंटीनेटल सारे उसमें बताया कि हम इसकी वीटी रिस्क असेसमेंट करेंगे, तो मैम वो रिस्क असेसमेंट में क्या पॉइंट्स देखेंगे कि हम इस पेशेंट को थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस पे डालें और इसको ना डालें, या हम सबको डालेंगे? देखें, एक तो असेसमेंट का तो ये मतलब आप है ना कि असेसमेंट में मतलब फिर ये क्या क्या लोग। चीजें पूछती हैं, आपके पास स्कोर्स के ग्राउंड्स हैं, दीज पेशेंट आर एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना? यस मैम। और यस मैम। उसकी मैम एज रीनल एज देखो डिफंक्शंस। 35 से ऊपर है, एज का यस स्कोर मैम। 1 है। इसके लिए ना आपको स्कोरिंग थोड़ी सी करनी आनी चाहिए पीटी की। मैंने शेयर की थी, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ग्रुप यस में मैंने मैम। यस मैम शेयर श्योर। कर दी थी। तो मैडम मतलब ये कि मतलब सारे ट्रांसप्लांट वाले आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉर थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस ना, अगर मतलब अगर वो असेसमेंट करेंगे। हम्म, ठीक। आप असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का इसमें रीनल ट्रांसप्लांट? कोई क्वेश्चन नहीं है, हम अगले उस पर मूव करें। डॉक्टर पलवशा, डॉक्टर नाहिद ने एक दफा बताया था कि जो हम ऑपोजिट साइड पे ना एपिजॉटमी देते हैं, तो इसमें कुछ वेसल्स उन्होंने बताई थी कि जो डैमेज होती हैं, उनका नाम पेल्विक वेसल्स थी या क्या थी? यार वो नाम तो मैं भी हमेशा भूल जाती हूँ, देख के बताऊंगी। ठीक है। हाँ, लेकिन मोस्टली जो देखो, पहले तो आपने एपिजोटमी का नाम ऐसे लेना नहीं है। हम सब में एपिजोटमी तो देते नहीं है, ठीक है ना? अगर आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ जा रहे हो और फिर एपिजियोटमी आप देने जा रहे हो, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के लिए एपिजियोटमी इज इंडिकेटेड।
अगर ये प्राइमी होगी तो वो वाली बात नहीं करनी जो हम नॉर्मली अपने क्लिनिकल उसमें करते हैं कि प्राइमी को हम एपिजोटमी दे देते हैं। वो तो हमने एग्जाम में करना ही नहीं है, वो तो क्लिनिकल चलती है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। आप बोलेंगे कि इफ आई विल असेस सर, अगर वो आपको बोलती हैं कि अगर इसको इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी की नीड पड़ती है तुम्हारे पेशेंट को, तो फिर तुम किस साइड पे एपिजोटमी दोगी, तो फिर आप ऑपोजिट साइड पे देंगे। और उसका रैशनल दो तीन उसकी रीजंस है। पहला ये कि ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है ना, ये पेल्विस में थोड़ा नीचे डीप उसी साइड पे नहीं इम्प्लांट किया जाता जहाँ पे किडनी नॉर्मल होता है हमारा, उससे थोड़ा सा नीचे किया जाता है। तो मीडियोलेटरल जो एपिजोटमी हम देते हैं ना, उससे एक तो आपको पता है हीमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं और कट एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस वजह से किडनी क्योंकि नीचे ट्रांसप्लांटेड है थोड़े से डाउन इन द पेल्विस, तो इस वजह से हम जो है ना अवॉइड करते हैं। दूसरा फिर हीमाटोमा बन गया तो वो एक्सटेंड कर सकता है। बाकी वो जो आप बात करिए ना वेसल की, आई एम सॉरी, ये जो आर्टरीज के नाम है ना ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मैं आपको देख के बताऊंगी, या मैं अपने नोट्स में से सर्च ठीक करूंगी, देखूंगी मुझे अगर मिलता है। अगर किसी को पता है तो बताए, एनीबडी जिसको पता है। मैडम मुझे एक दूसरा सवाल पूछना था कि इसमें ड्रग्स जो है एज़ोथ्रोपिन, मिथाइलप्रिडिसोलोन, ये सेफ है? कौन सी कंट्राइंडिकेटेड है? माइकोफिनोलेट और क्या? थोड़ी सी ड्रग्स रिव्यू तो बता दे थोड़ी सी। देखो अगर आपकी सेफ और पेशेंट मीथोट्रिक्सिट ले रही है, ठीक है, कोई भी एंटीफोलेट ले रही है वो अनसेफ है। एमएमएफ टेराटोजेनिक है वो नहीं लेगी, ठीक है। इसके अलावा हाँ एजोथायोप्राइन स्टीरॉइड्स ये सेफ हैं। और टेक्रोलीमस जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं वो सेफ हैं। लेकिन टॉप में लिखा हुआ है कि जो पेशेंट्स कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स ले रही होती है ना, उनके लेवल्स हम लोगों ने करवाने होते हैं ब्लड में, वो हम नहीं कराते, वो नेफ्रोलॉजिस्ट उसका फिजिशियन करवाता है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इफ शी इज ऑन सेफ ड्रग्स बिफोर embarking टू प्रेगनेंसी, या इफ शी हैज प्रेजेंटेड विद प्रेगनेंसी एंड आपको नहीं पता कि वो पहले आपके पास पहले से प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए नहीं आई थी और अब आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो, देन यू विल आस्क के कौन सी ड्रग्स ले रही है। तो फिर उस जब वो ड्रग्स बताएगी तो यू शुड नो कि कौन कौन सी सेफ है और कौन सी सेफ नहीं है। ये सारी जो सेफ और अनसेफ है ना, ये टॉप आर्टिकल में लिखी हुई है। सही है। EIA क्या लिखा है किसी ने? किसी ने ऊपर मेंशन किया हुआ है ओके, ना आर्टरी का रीनल नाम, तो वो आर्टरी, मैं हाँ पूछ रही रीनल थी आर्टरी। आपसे। रीनल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को ड्रेन करी होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं जो बाकी सही बात है। ये इसी की वजह से जो है ना, क्योंकि उसकी डाउन पेल्विस में भी ब्रांचेस होती हैं और इस वजह से अगर कोई भी हमने आर्टरी को लाइगेट कर दिया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के सर्च करके आपको क्लियर कट जवाब देने लायक जो है ना वो आपको भेजूंगी रेफरेंस। ठीक है, ये मैं हमेशा जब टॉपिक पढ़ती हूँ उसी वक्त मैं रट्टा मारती हूँ, मुझे बाद में ये भूल जाता है। आई थिंक ये ड्यू हर्ट्स में भी लिखा हुआ है। आई विल लेट यू नो आफ्टर क्लास इंशाल्लाह। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार जवाब दिया करो प्लीज, मैं हर वक्त चैट नहीं खोलती होती जब स्क्रीन खुली। नहीं डॉक्टर पलवशा, कोई मसला नहीं है। चलें नहीं, नेक्स्ट थैंक यू टॉपिक। डॉक्टर पलवशा। ओके, चलें जी, अब हम रीनल पर ही हैं तो हम रीनल को ही पहले कंप्लीट करेंगे। कौन है नेक्स्ट वॉलंटियर? जल्दी बताओ, 3 टॉपिक है कवर करने हैं। डॉक्टर आगे किसी को मेरी आवाज आ जाती है तो मैं स्टार्ट कर करो लेती प्लीज। हूँ। तुम नहीं, तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मुझे पता है कितनी एफर्ट लगती है। आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस मिजरेबल टाइम। मैडम, अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर मैं करूँ? चलें, ये इसलिए नहीं कर रहे ये लोग, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा एंड दे आर अफ्रेड के पढ़ा नहीं है तो मिस्टेक करेंगे। चलें, बट अगर नहीं भी पढ़ा हो ना, यू शुड श्योरली जंप इनटू प्रेजेंटिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है। ये कोई यहाँ पे तुम जज नहीं हो रहे, मैं कोई मार्क्स नहीं दे रही।
और जब गलती करोगे तो जब वो सही होती है ना हमेशा वो याद रहती है। इस वजह से टॉपिक ना भी तैयार हो तो प्रेजेंट क्या करो। चलो गुलशन बिस्मिल्लाह करो, पढ़ो अपना Yes, स्नैप। madam. Yes. You are the R4 in antenatal clinic and you have been asked to see the patient Nadia Hassan to the first time. She is on antihypertensive secondary to the renal problem. Take the history and future pregnancy. Okay. मैडम ये तो फिर रोल प्ले हो जाएगा। यस अस्सलाम दिस वालेकुम, इज मेरा नाम डॉक्टर रोल गुलशन। प्लेयर। यस। वालेकुम यस सलाम। मैडम, मेरा नाम डॉक्टर गुलशन है। मैं आपकी आज ओपीडी में डॉक्टर हूँ और मुझे एक तहरीरनामा मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप नादिया हसन हैं। आप पहली दफा मेरे पास आई हैं और आप ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रही हैं कुछ गुर्दों की बीमारी की वजह से। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब दुरुस्त है। अच्छा ठीक है नादिया, आप अपने नाम बता जैसे उम्र बता सकती हैं, आपकी क्या है उम्र? डॉक्टर साहब मेरी 25 साल उम्र है। अच्छा, और शादी को कितना समय है? शादी को तकरीबन हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। और कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहब बच्चे मेरे कोई नहीं है, ये मेरा पहली बार जो है ना मैं प्रेगनेंसी करने लगी। अच्छा, बच्चा ही पहला है। जी ठीक है ठीक है। अ, पहली दफा आई हैं, पहला हमल है। माहवारी कब आई थी आपको? डॉक्टर साहब माहवारी की मुझे डेट तो नहीं याद, लेकिन जी जो है जी। ना डेटों के हिसाब से पहला जो अल्ट्रासाउंड कराया था 15 हफ्ते हैं, बल्कि आज ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, 15 हफ्ते हुए हैं। अच्छा ठीक है, 15 हफ्ते की हमल है आपका। जी। ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका अपना ब्लड ग्रुप पता है? बी पॉजिटिव। बी बहुत। आप कितना लिखी पढ़ी हैं नादिया? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ डॉक्टर साहब, चलो इंटर सही के है, बच्चों ठीक को है पढ़ाती हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा अपने मसले की वजाहत कर सकती हैं कि आपको गुर्दों का मसला कब से था, क्या था, और उसके लिए आप दवाएं कब से शुरू कर रही हैं, क्या ले रही हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। डॉक्टर साहब मैं कोई तकरीबन 19 साल की थी जब से मुझे जो है ना ये किडनी का मसला डायग्नोज हुआ था। एंड ये इस फोकल सेगमेंट आप मेरे नोट्स दे सकती हैं, उसमें लिखा हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है मुझे, और मैं तब से दवाइयाँ ले रही हूँ, रेगुलर डॉक्टर को भी दिखा देती हूँ। मतलब ठीक है, उसके लिए आप दवाई लेती हैं। तो फिर आप जो हमल में वैसे आपकी अभी 15 हफ्ते की हमल है, तो हाँ जी। आपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर ही आपने हमल किया था? जी जी। आपने दवाई, डॉक्टर ने दवाई तब्दील की थी? अभी वैसे ब्लड प्रेशर वगैरह कैसे कंट्रोल रहता है? अभी क्या लेती हैं ब्लड प्रेशर के लिए? डॉक्टर ब्लड साहब प्रेशर के लिए कौन सी दवाई, कितनी मैं मिकदार में? मैं दवाई जो है ना पहले हमल से पहले ले रही थी लिसिनोप्रिल ना, तो फिर मेरे अच्छा डॉक्टर अच्छा। ने उसको चेंज कर दिया जब मैंने कहा ना कि मैं प्रेगनेंसी करनी है, तो उन्होंने मुझे ना हाँ, उस पे डाल दिया, मिथाइल डोपा पे डाल दिया। मैं 500 mg लेती हूँ बीडी बीडी लेते हैं, चलो अल्बा। सही। अभी कंट्रोल रहता है? ब्लड प्रेशर अभी चेक करवाए ताजा? हाँ अभी का ब्लड प्रेशर नर्स ने मेरा चेक किया है, वो 120/80 है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा अभी और आपको मजीद मसला तो नहीं हो रहा, जैसे आंखों के आगे अंधेरा, उल्टी मतली, या इसी मसले के लिए कभी आप जैसे कि आप कह रही हैं अभी आपकी 25 साल है, आपको ये मसला 15 साल की थी, तो ये 6 साल से आपको जो मसला चल रहा है गुर्दों का, इसके दौरान आप कभी कोई पेचीदगी हुई हो या फिर अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, चले सही है। और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ठीक है, आपका ये हमल खुद हुआ था, दवाइयों से हुआ था? खुद ही हुआ था डॉक्टर साहब। रिपोर्ट वगैरह करवाई थी? ब्लड प्रेशर पहले इस महीनों में आपने चेक करवाया? ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? पेशाब हाँ की रिपोर्ट करवाई, उसमें पेशाब में ब्लड चर्बी तो नहीं आई? प्रेशर मेरा कंट्रोल रहता है। अभी जो है ना नर्स ने वो एक टेस्ट किया था मेरा डिपस्टिक वाला, उस पे उन्होंने कहा है कि प्रोटीन आया है अच्छा अच्छा ठीक है। यूरिन में। और जी। उसके अलावा आप मुझे बताएं, फोलिक एसिड की गोली हमल से पहले और हमल के दौरान अभी खा रही थी? हाँ जी मैंने फोलिक एसिड की गोली? फोलिक एसिड भी ली है, और बच्चा, मुझे मुझे एस्पिरिन भी स्टार्ट करवा दी थी मेरे डॉक्टर ने, मैं वो भी ले हाँ रही हाँ ठीक है, वो भी आप बाकायदा सिखा रही है, चलो अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हमल जो आपने अल्ट्रासाउंड 15 हफ्ते पे करवाया था, उसमें एक ही बच्चा बताया गया है? वो बच्चे की धड़कन आई है? बच्चा हूँ। हाँ जी ठीक है बच्चे माशाल्लाह? की धड़कन भी आई है, और एक ही बच्चा हाँ है, हाँ। और उन्होंने न्यूकल आज मैं ट्रांसमिशन तो बाहर की वो बैठी भी हुई थी बिल्कुल धूप ठीक में, है। यही पड़ी हुई थी तो अच्छा अच्छा ठीक है। उसके अलावा जैसा कि आप अभी 15 हफ्ते में है ना, तो आपने अभी कोई खून की रिपोर्ट, अभी खून की कमजोरी, आपको थकावट, दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही है आपको?
नहीं नहीं, मेरी खून की रिपोर्ट करवाई है मैंने कुछ दिन पहले ही। वो ठीक है, एचपी पूरी है मेरी 10 से। 10 है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको और कोई मसला, शुगर का मसला, दिल का मसला, कोई गुर्दों का मसला, ज्यादा मसला बड़ा हो, या फिर और कोई मसला, या यही मसले, गुर्दों के मसले खानदान में तो नहीं है हाँ जी, मेरे किसी भाई खानदान को? में, जी जी जी, मेरे खानदान में भी ये है मसला। हाँ दूर हाँ। दराज के लोगों को है, मेरे अपने अम्मा अब्बा बहन भाइयों को नहीं है, दूर दराज में है। अच्छा 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 ठीक है। और आपने कभी और कोई ऑपरेशन, आपने कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाई नहीं इस डॉक्टर, मसले के लिए? नहीं जी नहीं, नहीं, कोई या जरूरत और कोई ऑपरेशन, या किसी दवा से एलर्जी हो, या कोई दवा किसी अरसे से ले रही हो किसी और मसले के लिए, नहीं, बस यही दवा ले रही हूँ मैं। ताकत की गोली खा? अच्छा ठीक है। और आप और कुछ मुझे बताना चाहेंगी अपने मसले के, जो कुछ और? नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है। मेरा जो है ना अभी हम्म, हमल से पहले कुछ टेस्ट मेरे हुए थे, तो उसमें उन्होंने ना मेरे सारे रीनल फंक्शन टेस्ट करवाए थे, मेरे हाँ फिजिशियन ने। हाँ, तो मुझे बता दो उसमें जी मेरा जी। जो क्रेटिनिन लेवल था ना वो बढ़ा हुआ आया था, वो 260 आया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये आपका बढ़ा हुआ है ज्यादा हमल के हिसाब से, आप जो है ना डॉक्टर को दिखाएं जाके। जी जी, सही। फिर आपने डॉक्टर को ये बताएं कि आपने कहा ब्लड प्रेशर के लिए मैं ये लिमिटेड रोल है, मगर आप गुर्दों के लिए क्या ले रही हैं, क्या कौन सी एंटीबायोटिक ले रही हैं, कौन सी दवाई ले रही हैं? और अभी तक आपने कोई अल्ट्रासाउंड गुर्दों का करवाया है, कोई रिपोर्टें करवाई हुई है? जी डॉक्टर साहब, मेरी डॉक्टर ने ना कोई 3 महीने पहले गुर्दों का अल्ट्रासाउंड भी कराया था, और वो मुझे बस ये क्रेटिनिन करवा रहे हैं, मेरा बीपी चेक करते हैं। तो क्रेटिनिन पहले तो ठीक आ रहा था, अब ये क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। और बस मैं यही ले रही हूँ, बीपी वाली गोली ही ले रही हूँ। इसके अलावा डॉक्टर साहब मुझे ना पेशाब का इन्फेक्शन रहता है हाँ हमेशा से ही ना, तो उसके लिए फिर मैं एंटीबायोटिक जी। ले रही अच्छा ठीक है। पेशाब रुक रुक कर आता है, जल के आता है? हूँ। नहीं, उसके लिए एंटीबायोटिक ले रही है, अभी मुझे सही है यूटीआई आप रहता एंटीबायोटिक है, लेने के बाद? मुझे यूटीआई रहता है, तो डॉक्टर ने हम्म, मुझे जो है ना अच्छा एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक डाला। अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपने 4 साल से आपकी शादी हुई है, और आपका हमारा ये पहला अभी है 15 हफ्ता का, तो आपने पहले कौन सा वक्फा इस्तेमाल किया था? पहले मावा ठीक आती थी, ज्यादा कम तो नहीं आती थी? माहवारी से ही आती थी, मैं सीओसीपीज ले रही थी। अच्छा ठीक है। और आपका वजन क्या कितना है? और कोई सिगरेट नोश तो नहीं करती? माफ कीजिएगा, ये नहीं पूछना जरूरी होता है। नहीं नहीं, वजन मेरा 58 kg है। ठीक है, मैं आपकी नर्स को जिद में मुआयना करूंगी, ओके। और उसके अलावा मैं आपकी रिपोर्ट करवाऊंगी। मैडम अभी बस एग्जामिनेशन करूँ, बस अकाउंट से शुरू कर लेती हूँ, सही मैडम? देना अच्छा ठीक है। देखिए देखिए नादिया, मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो बुला सकती है, ताकि मैं आगे का राय अमल आपको बता दूँ। नहीं, मैं अकेली हूँ, आप मुझे बताएं अब। ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये क्रेटिन तो बहुत बड़ा हुआ है, अब आपकी जो मसला है, इसको डॉक्टर के जी पास जी। जाएं, और आपकी प्रेगनेंसी का वो बताएंगी कि कैसे आप मैनेज करेंगी अब। तो आप प्लीज, मैं बहुत डरी हुई हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी मेरी बीमारी भी और खराब हो जाए और मेरे बच्चे को फिर कोई नुकसान ना हो जाए। मैं काफी परेशान हूँ मैं। जी नहीं नहीं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं और मेरी टीम आपके साथ मौजूद है। आपकी डिलीवरी इंशाल्लाह हम ऐसे तरीके से करवा जाए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो जैसे कि 15 हफ्ते का हमल है, और ये मैंने जो है 15 हफ्ते का हमल है, इसमें ये आपके ये आप जो खून पतले करने की गोली ले रही है आप कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद में मैं जैसे कि आपकी क्रेटिन भी बढ़ी हुई है, मैं हम्म। आपको एक डॉक्टर के पास रेफर करूंगी, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब गुर्दों का डॉक्टर है। वो आपकी क्रिएटिन के हिसाब से आपको और जैसे कि आपको यूटीआई रहता है, आपके एंटीबॉडी के ड्रग्स देखेगा, और आगे वही आपको उनके मौजूदगी में हम जो मेडिसिन चेंज करेंगे कि आगे ये मसले हो सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब, मेरे तो आपको ये पहले बताना से चाहूंगी। डॉक्टर है ना, आप मुझे और डॉक्टर के पास भेजेंगी? नहीं, गुर्दों के डॉक्टर की पास ही भेजूंगी, जो जिसको आप दिखा रही हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपका 15 हफ्ते का है हमारे, तो हम 20वें हफ्ते में आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे बच्चे की बनावट का। ये देखा जाएगा कि बच्चे, एक सेकंड मैडम,
फिर 20 हफ्ते में आपका बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। उसमें ये देखा जाएगा कि आपका जो है बच्चे की बनावट में ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, यही मसला आप बच्चे में तो नहीं है जैसे गुर्दों का मसला, क्योंकि ये खानदानी आपका चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी ये देखूंगी बच्चे की हम ग्रोथ का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और 24 हफ्ते में, ताकि ये देखा जाएगा कि बच्चा कमजोर तो नहीं है, बच्चे का पानी कम तो नहीं है, अव्वलन कहाँ पे बच्चा मतलब बच्चे की पोजीशन किस तरीके से है। ठीक है, उसके अलावा शुगर प्लाकेट टेस्ट किया जाता है और जो शुगर प्लाकेट टेस्ट की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क है। रिस्क क्या हो सकते हैं, हमल के दौरान आपको क्या रिस्क हो सकती है, आपका बच्चा जाया हो सकता है, बच्चा कमजोर हो सकता है, बच्चा वक्त पहले पैदा हो सकता है। उसके अलावा बच्चे की जैसा कि आप हमल से हैं तो आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से खुदा खास्ता आपको झटके पड़ सकते हैं, आगे स्ट्रोक हो सकता है और सीजर सेक्शन का पड़ सकता है, खुदा खास्ता कभी बार डेथ भी हो सकती है अगर स्ट्रोक या फिर 2 मिनट के बच्चे। अच्छा, उसके बाद हम अच्छा उसके बाद मैं जैसे कि अभी गुर्दे वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी। एक मिनट मैं दे रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है, और उसके बाद आपको आगे मुद्दत तक ले जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, 2 मिनट में दे रही। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई तो हम मुद्दत तक ले जाएंगे आपको, और डिलीवरी के दौरान हमको आपको जैसा कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो बच्चे, हाँ, जैसा कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर दे रही हूँ बच्चे, 2 मिनट दे दूँ, 2 मिनट दे दूँ, 2 मिनट क्लास चल रही है। अच्छा, जैसा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपकी बच्चे के आपका आपका ब्लड प्रेशर, मैडम बच्चे मैडम ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लैक डॉपलर जाके ये देखा जाएगा बच्चा कमजोर तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी मसला ना हुआ आपको हम मुद्दत तक ले जाएंगे, मगर हम आपको एक टीके में लगाएंगे ताकि बच्चे की फेफड़े को मजबूती हो और बच्चे मुद्दत तक हम डिलीवर करेंगे, और डिलीवरी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाएगा और इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद डिलीवरी के जब हम बच्चा पैदाइश के बाद, और हम एक इंजेक्शन जो है वो अवॉइड करेंगे, जैसे कि आपको एनसेड होती है या फिर अर्गोमेट, ये हम नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको खून ज्यादा ना बहे, और उसके अलावा बच्चे की पैदाइश के बाद आपको जल्दी कहा जाएगा, बच्चे की बच्चे वाले डॉक्टर मौजूद होगा, और उसके अलावा जो है बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, और उसके अलावा आपको वक्फा दिया जाएगा, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको एस्पिरिन, फोलिक एसिड। मैडम डिस्चार्ज मैडम ये है कि अगर कोई मसला ना हुआ तो अगर कोई मसला ना हुआ तो आपकी रिपोर्ट से करवाई जाएगी डिलीवरी के बाद, तो फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे और दोबारा फॉलो पे बुलवाया जाएगा, 2 हफ्ते के बाद बुलाया जाएगा, उसमें खून की रिपोर्ट होगी और गुर्दों की रिपोर्ट होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं, अगर कोई और मसला है, कोई सवाल है, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। ओके गुलशन, आपने हिस्ट्री तो मोटी मोटी सारी ली, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ली। आपने हिस्ट्री में काफी यस टाइम लगाया है, बहुत लंबी हिस्ट्री ली है आपने। ठीक है, रुको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आपकी मैनेजमेंट काफी एफेजेड थी। आपको पेशेंट ने, ये उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, इट वाज रिटन हेयर, और एंटी हाइपरटेंसिव वो ले रही थी, रीनल प्रॉब्लम। अच्छा चलो, उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी, आपको ये मसला कब से है और किस उम्र में डायग्नोज हुआ, वो वाली बातें भी हो गई। फिर आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस भी, हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री भी, सारी चीज़ें जो है वो आपने पूछ ली। अब पेशेंट ने आपको खुद ही बता दिया, वो पहले किसी और ड्रग पे थी, अब वो किसी और, अब वो सेफेस्ट ड्रग ले रही है। ठीक है, उसका करंट बीपी भी उसने बता दिया। अब जो असल मसला था वो क्रेटिनिन था। तो अब वो जब उसने आपसे पूछा, मैनेजमेंट की बारी आई, आप एग्जैक्ट पूछे वो आपका क्रेटिनिन कब हुआ था, तो वो बताती है आपको कि 2 हफ्ते पहले हुआ था। तो आप अब दोबारा रिपीट करवाती हैं, क्योंकि अब वो आपके पास आई है, आप एक बार रिपीट करवाती हैं उसकी सारी चीजें। ठीक है, रिपोर्ट्स उसकी सारी रिपीट करवाएंगी आप, और आप उसको काउंसल करती हैं। जब उसने काउंसलिंग की बात, जब उसने बोला कि मेरी प्रेगनेंसी को क्या रिस्क है, मेरे बच्चे को क्या रिस्क है, तो आप उसमें बताएंगी कि देखें, जैसे कि आपको ये किडनी का मसला इतनी पुराना है, और चूंकि अब आपको जो है आपका पेशाब में चर्बी भी आ रही है, और जो क्रेटिनिन है वो आपका कदरे ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो आप उसे बोलेंगे यस ये मैडम। दिस इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं, हाई रिस्क को उर्दू में क्या बोलेंगे, पेचीदगी वाली, पेचीदा। पेचीदगी, हाँ पेचीदगी मैम वाली पेचीदा। प्रेगनेंसी है। हाँ थैंक यू यार, ये पेचीदगी वाली प्रेगनेंसी है आपकी। इस आपका लेकिन आप परेशान नहीं हो, आपका जो मसला है हम आपको मॉनिटर करेंगे, और आपका ब्लड प्रेशर अभी तो ठीक है, मैं अभी आपका फ्रेश भी ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, और अगर ब्लड प्रेशर ठीक हुआ ठीक है, और आपकी दवाइयाँ भी देखूंगी, अगर दवाइयाँ आपकी उसमें कोई रद्द बदल करने की जरूरत है इस क्रेटिनिन बढ़े हुए के वजह से, तो फिर हम आपके डॉक्टर के मशवरे से, जो ऑलरेडी आपका डॉक्टर है उसके मशवरे से हम आपकी जो है ना दवाइयों में रद्द बदल करेंगे। अब दूसरी बात ये कि आप परेशान है कि आपके बच्चे में कोई मसला तो नहीं होगा, तो वो बच्चे में मसला जो है वो आपने 1 2 3 करके बच्चे का सारा बता दिया, लेकिन साथ आपको न्यूट्रिएंट बता रही थी। आप पहले 1 2 3 करके FGR हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है, ये चीजें बताएं। फिर पेशेंट में आपने सीधा स्ट्रोक करा दिया, डेथ करा दी, अल्लाह की बंदी, उसको किडनी अच्छा। फेलियर में जा सकती है। पहली चीज, उसको क्रेटिनिन रेस की वजह से उसको प्री इक्लेम्शिया हो सकता है, ठीक है। फिर अब तो सीधा तुमने स्ट्रोक करा दिया, डेथ करा दी, हो तो परेशान हो जाएगी सर, रोने लग जाएगी वो तो, सर पकड़ लेगी वो तो। आप बताएं कि अगर आपका मसला, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इस क्रेटिनिन बढ़ने की वजह से, ठीक है, और क्या कहते हैं और ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से खुदा न खास्ता आपको झटके पड़ सकते हैं हमल में, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं आपको खून की कमी होने का मतलब क्रोनिक रीनल डिजीज जो होती है उनको अनीमिया होता है, ठीक है ना, यस क्योंकि प्रोटीन यूरिया होता है उनको कंटिन्यूस, तो उसकी वजह से उनको अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको किडनी फेलियर, आपको ऐसा भी हो सकता है खुदा ना खास्ता, अगर ये कंट्रोल नहीं हुई मसला, तो आपको डायलिसिस पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। डायलिसिस से याद आया, आपको ये भी पूछना था, उसको 19 साल से ये मसला है, जब वो 19 साल की, अब उसने आपको क्या 25 साल बताए, तो आप उसे बोले आपको पहले कभी डायलिसिस तो नहीं हुई, आप यस हिस्ट्री तो मैडम। लें उससे डायलिसिस, यस ठीक है। मैडम। ये पूछें। अच्छा फैमिली हिस्ट्री आपने पूछ ली, उसने खुद ही बता दिया वो एस्पिरिन वो ले रही है, फिट एंड वेल है वो, अदरवाइज फैमिली की हिस्ट्री उसकी इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई फैमिली की हिस्ट्री नहीं है। ये जो ओरल एंटीबायोटिक्स थी ना, ये आपको मुझसे पूछना था, आपको रिस्क जब पता होंगे ना कि क्रोनिक रीनल डिजीज वाली पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो आपको पूछना था। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने आपको खुद बता दिया। इनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है यस मैडम, मैं या पूछ रिस्क रही होता है, पूछ रही थी, मैंने आप आपको पहले हिस्ट्री में बता दिया। पूछेंगी, ठीक है गुलशन, यस मैडम। यस मैडम। आप हिस्ट्री में पूछेंगी तो वो आपको बताती कि मैं तो एंटीबायोटिक्स पर हूँ। यस अगर नहीं पूछा या पूछा तो वो अनरिमार्केबल थी हिस्ट्री, तो आपने तो हिस्ट्री में ये 3 4 चीजें जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आप पूछेंगे, ठीक हो गया। मैडम। यस मैडम। यस अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं, तुम्हारी मैनेजमेंट तो मैंने मोस्टली करेक्ट करा दी। दूसरा ये कि आप उसको एंटीनेटल विजिट्स, आप इस फ्रीक्वेंसी बताओ, आप 4 वीकली उसको बुलाओगे, हर विजिट पे ब्लड प्रेशर चेक होगा, क्रेटिनिन चेक होगा, प्रोटीन यूरिया देखा जाएगा, ठीक है, मैडम, जैसे बीपी बच्चों में मॉनिटर होगा। जल्दी हाँ जी, उसकी पूरी जो प्रेगनेंसी मॉनिटर होती है ना, वो सीरम क्रेटिनिन से होती है। सीरम क्रेटिनिन आपको बताता है कि ओवरऑल हाउ इज हर किडनी इज फंक्शनिंग, what more test is required in your patient, ओके। ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज पता है, क्रोनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस, यस मैडम। ठीक है ना। इसका एक टॉग आर्टिकल है, उसमें स्टेजेस लिखे हुए हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज। जो स्टेज 1 होता है उसमें जो है पेशेंट का किडनी डैमेज तो होता है, फोकल डैमेज जो अल्ट्रासाउंड में आते हैं, ठीक है ना, वो तो होते हैं, लेकिन GFR बिल्कुल ठीक होता है, वो स्टेज 1 होता है, उसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद यस स्टेज 2 होता है, उसमें GFR थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूस होता है, और स्टेज 3 में अच्छा खासा रिड्यूस होता है। 4 में जो है उसका क्या कहते हैं, वो डायलिसिस पे भी होती है patient। ये स्टेज 4 तक मैडम। आपकी किडनी डिजीज, इसलिए आपको क्वेश्चन जरूर पूछना, डायलिसिस का जरूर पूछेंगे आप, क्रोनिक किडनी डिजीज, यस आपको स्टेज का तो यस पता चलेगा, या आप पेशेंट से ही पूछ लें। स्ट्रक्चर डिस्कशन है तो आप उनसे पूछें, मैडम आई वांट टू नो हर स्टेज ऑफ किडनी डिजीज इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड। अगर वो बोलेगी कि जाहिर सी बात है इतनी पुरानी उसको किडनी डिजीज है, ये पक्का पक्का एस्टेब्लिश्ड होगा कि ये किस स्टेज पर है, ठीक है, उसके लिए हमें GFR चाहिए।
अगर Yes, GFR नॉर्मल है तो ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, ये स्टेज 1 की ही होगी। अगर वो कहते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री है डायलिसिस की, इसको ऑन एंड ऑफ डायलिसिस रहती है, तो फिर ये एंड स्टेज किडनी डिजीज है जिसकी वजह से वो एंड अप हुई है डायलिसिस पर। ठीक है, yes, madam. तो Yes, आपने सबसे पहले तो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई कर लिया हिस्ट्रीज के क्वेश्चंस पूछकर, फिर इन्वेस्टिगेशन, yes. बीच इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिसमें क्रेटिनिन आपको दे दिया गया है रेस्ट। अब आप ये खुद मैनेज नहीं कर सकती पूरा पेशेंट, आप इन लाइजन विद नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी उसको देख रहा है, आप उसके मदद से आप जो है ना इसको देखेंगे। ठीक, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 4 वीकली आप बुलाती हैं, और हर एंटीनेटल विजिट पे फिर आपको उसके हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से हम एंटीनेटल विजिट पे उसको चेक करते हैं। फिर डिलीवरी, अब पेशेंट आपसे पूछेगी आप मुझे डिलीवर कैसे करवाएंगी डॉक्टर साहब, कितने टाइम पे डिलीवर कराएंगी, तो गुलशन टेल मी, मुझे कितनी मुद्दत तक लेके जाओगी और मुझे डिलीवर मोड ऑफ डिलीवरी मेरी क्या होगी? Yes, madam. As patient is the glomerular filtration rate is normal and there is no any complication. Then I would like to as up to the most the term after the 37 week after 37 because there is a if 37 there's no टर्म contraindication. गुलशन, 37 टर्म 37 madam after no madam after 37 week ओके। शी इज प्राइमरी क्योंकि इसको ब्लड ग्रेविटी, प्रेशर भी देना मैडम अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा तो उस पर भी देखा जाएगा कि मैं ये नॉर्मल, मैं IUGR के साथ आइडियल नहीं आ रही सिचुएशंस का पूछ रही हूँ। दिस इज स्टेज 1 एवरीथिंग नॉर्मल क्रोनिक किडनी मैडम डिजीज। फिर 40 वीक पे अगर कुछ भी नहीं है तो कंट्रोल है ब्लड प्रेशर तो ठीक है, अच्छा, अगर ये स्टेज 2 होती और रीनल फंक्शन टेस्ट भी ठीक होते, GFR भी ठीक होता, क्रेटिनिन भी ठीक होता, हाइपरटेंशन होती लेकिन कंट्रोल्ड होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो कितने हफ्तों तक लेके जाती? मैडम फिर 37 to 38 के दरमियान 38 तक आप इसको 38 से 40 तक करवा सकती हैं। रेफरेंस इज नाइस गाइडलाइन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपके पेशेंट को अगर स्टेज 4 और स्टेज 5 होगा, yes madam stage 4 and 5 madam as the stage 4 and 5 there is she's on the dialysis and the kidney function is age so madam the delivery should be madam uh, after 35 weeks I think 36 मुझे याद नहीं आ रहा मेरे ख्याल से इतना होता है कि 34 35 क्योंकि पेशेंट वी हैव टू एज मदर इज compromising so first priority to the mother as compared to baby so it's yeah I am 35 asking 37 के about दरमियान ideal डिलीवरी होगी situations. Ideal. Your patient is stable, her biochemistry is stable, her baby is stable. There is no obstetric indication of, preterm delivery. Then, till how much gestational age you will take her safely? मैडम 35 37 के दरमियान 37 37 38. 38. जो आप 35 कह रहे हो ना, दिस इज प्रीटर्म। अच्छा यस मैडम वो आप प्रीटर्म मैडम उसको निकाल रहे हो मैं बेबी ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जी जी मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी स्टेज 4 में तो मैडम पेशेंट अगर स्टेप है तो भी मतलब हम 38 तक ले जाएं आप ये कह रही हैं हाँ, मतलब स्टेज 2 है या 3 4 अगर वो अगर स्टेप है तो आपकी 38 तक ले जाएं फीचर इंडिकेशन या ऑप्स इंडिकेशन मम्मा की बन रही है, अनकंट्रोल्ड बीपी है, प्रोटीन यूरिया, उसको डायलिसिस हो रही है रिपीटेड, फिर आप अर्ली उसको स्टीरॉइड्स देके डिलीवर करवा सकती हैं। बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल देन यू शुड स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जो स्टेज 3 के भी सब पार्ट्स होते हैं उसको छोड़ दो। स्टेज 3 तक आप आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक हर टू 40 वीक्स ऑफ gestation unless there is an indication of early delivery। ठीक है, जो फिर अब आ गया आपका 4 5। इसको अगर आपकी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो फिर आप इसको 38 तक लेके जा सकती हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप 34 से पहले उसको स्टीरॉयड देके डिलीवर करवा सकती हैं। 34 वीक्स इज द कट ऑफ कि अगर आपको प्री टर्म डिलीवरी करवानी है तो यू आर अलाउड टू डिलीवर हर बिफोर 34 वीक्स। यस मैडम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये पेशेंट जब आपके पास लेबर में आएगी तो किन किन चीजों का यू विल टेक केयर? हाउ विल यू मॉनिटर दिस Yes, पेशेंट? madam. Yes, madam. Madam, during the delivery, I will monitor the patient one-to-one support, and this delivery should be in the considered lead unit and lead unit, and this BP monitoring should be there, and continuous CTG and the labor care guide management. And there is a How madam, frequently do you as monitor patient her is blood the pressure? chronic disease. Madam, the blood pressure should be, madam, the control with the, if there's I have control 140/90 with the IV Lebdelol, कहाँ जा रही हो गुलशन? and madam, कहाँ जा रही हो and madam, गुलशन? I will नहीं मैंने पूछा है कितना फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करेंगे आप पेशेंट का? मैडम ये वन आवरली Okay. वन आवरली ब्लड प्रेशर के अलावा और क्या क्या चीजें ड्यूरिंग आप लेबर। मॉनिटर करेंगी? मैडम बाय बीपी, फर्स्ट टेम्परेचर, रेस्पिरेट रेट और कॉन्ट्रैक्शंस, बेबी की सीटीजी, पीटर साउंड, और उसके अलावा जो है मैडम, और उसके अलावा बिशप स्कोर भी तो देखते हैं प्रोग्रेस करेगी नहीं करेगी कार्डियोग्राफ के हिसाब से। चलो मैं बता देती हूँ। आप हार्ट रेट आवरली और बीपी मॉनिटर मैडम करते हो? स्टार्टिंग हार्ट रेट आवरली मॉनिटर होगा, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ऑस्कल्टेशन, इनपुट आउटपुट चार्ज जो इतना इंपॉर्टेंट है किडनी के फंक्शन में, आपने जिक्र नहीं किया, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सारी चीजें 4 आवरली होंगी। मैडम अभी किया मैंने। ओके ठीक है। और रीनल फंक्शन टेस्ट बेसलाइन करवाएंगी जब पेशेंट आपकी एडमिट होगी? यस मैडम। ओके। एंड और किस चीज का आप ख्याल रखेंगे जितनी देर तक आपकी पेशेंट लेबर में रहेगी? मैडम एक तो हाइड्रेशन होगी और उसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन नहीं होने अवॉइड देंगे करेंगे पेशेंट को। एसिड को अवॉइड। शाबाश। ठीक है। फ्लूइड कितना दोगी? मैडम 80 ml पर केजी के हिसाब से, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना तो हम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, 80 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। ठीक है, शाबाश। और इस पेशेंट को अगर खुदा ना खास्ता फिट्स पड़ते हैं तो इसको फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट कैसे देंगी? मैडम मैग्नीशियम सल्फेट मैडम हम अपने वार्ड पे इस तरह देते हैं कि लोडिंग डोज देते हैं। पहले तो आईवी जो है लोडिंग डोज देंगे, मतलब उसके बाद मेंटेन डोज डोज देते बता, हैं डोज मैग्नीशियम बताओ, सल्फेट के। पूरा उसके डोज बाद बताओ। डोज बता। यस मैडम। यस यस मैडम। मैडम इसलिए देते हैं तो 4 ग्राम हम आईवी लोडिंग डोज देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम उसके अलावा 4 ग्राम आईवी से 5 to 15 मिनट्स के अंदर, उसके बाद 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से हम पर आवर नहीं 24 आवर देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये आप नॉर्मल का बता रही हो, मुझे किडनी वाले बंदे का बताओ। मेंटेनेंस कैसे देते हैं? लोडिंग इज सेम, ये तो नहीं आ रहा लोडिंग कम नहीं होता इन पेशेंट्स का। मेंटेनेंस में क्या करते हैं? मैडम। किसी को पता है मेंटेनेंस? मैडम मेंटेनेंस में हाफ देते हैं, हाफ देते हैं शायद। जी मैडम आसिया। मेंटेनेंस मतलब 1 ग्राम तो मैडम हाफ मेंटेनेंस जो है वो पेशेंट के बीएमआई के हिसाब से देते हैं उसको, जो है वो बीएमआई के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 1 to 2 ग्राम पर केजी। वो तो नॉर्मल है। मैडम मैं वो तो किडनी के क्रिएटिनिन पे डिपेंड करते हैं ना कि अगर किडनी के अगर फंक्शन डी रेंज होते हैं तो हम लोडिंग डोज किडनी को मतलब वो हो जाता है ना, टॉक्सिक हो जाती है मैम रीनल की, तो रीनल काम नहीं करता तो मैम ट्रांसफर ये करते हैं। मैम ये रीनल नहीं डिजीज में जो लोडिंग डोज है वो भी हाफ हो जाएगी 2 ग्राम, हम्म, और जो मेंटेनेंस है वो भी हाफ हो जाएगी 0.5 ग्राम पर आवर ना।
मतलब हाफ हो जाएगी। इसको मैं तुम लोगों को करेक्ट कर दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोडिंग आपका उतना ही होता है फॉर गैप, मेंटेनेंस आपकी हाफ होती है किडनी वाले पेशेंट। मेंटेनेंस हाफ होती है 0.5, लेकिन लोडिंग उतना ही होता है फॉर गैप। लोडिंग चेंज नहीं हुआ किडनी के पेशेंट्स में। जी मैडम, क्योंकि मैडम मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो एक्सक्रीशन मेनली थ्रू किडनीज होता है ना, इस वजह से वो क्योंकि लोडिंग तो आप उसको लिप- दे दोगे, उसकी डाइल्यूशन जो है वो इतनी ज्यादा भी नहीं होती। जो मेंटेनेंस होता है उसकी डाइल्यूशन ज्यादा होती है, तो इस उसमें आपने डोज भी आधा कर देना है। और आपने फिर मैग्नीशियम लेवल्स भी किडनी वाले पेशेंट्स में ना आपने फिर चेक करवाने होते हैं बाद में। यस मैडम। ठीक है, मुझे लगा था पता उसके नहीं हुआ अलावा कि एंटी उनको ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है ये तो। अवॉइड में अवॉइड करते हैं मैडम इसमें इंट्रापार्टनली। चले, और कुछ और रहा? मैडम इस पे लेबर के दौरान मैडम ले रही है, लेती रहेगी क्या? किडनी की जो दवाइयाँ हैं ये एज़ोथ्रोपिन वगैरह, आईवी लेबर लेबर में इसकी एंटीबायोटिक एज़ोथ्रोपिन या ये जो किडनी की लेगी हाँ ना, आईवी लेती फॉर्म। रहेगी, लेती रहेगी। ओरल फॉर्म में ले यस सकती है ये पेशेंट। ये मिथाइल डोपाई तो ले रही है आपकी पेशेंट, लेती रहेगी, कंटिन्यू रहेंगी। लेबर में भी। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें? ये टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? तुम लोगों के लिए ये टॉपिक मैंने पढ़ा है स्पेशली, और तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो। अब मुझे हाईलाइटेड ना मिल नहीं रहा, रुको, तो कुछ रह गया है तो मैं बताऊँ आप लोग। पहली चीज ये कि जो आउटकम होता है ना रीनल डिजीज, क्रॉनिक रीनल डिजीज इन प्रेगनेंसी में, आउटकम 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी जो रीनल इम्पेयरमेंट है वो कितनी है। मींस कि आपको स्टेज पता होना चाहिए किस स्टेज की बीमारी है, ठीक है, और किस नौयत की बीमारी, क्योंकि किडनी की जो क्रॉनिक डिजीज है वो एक नहीं है, बहुत सारी है। सही। एक मिनट रुको, मैं ना ये टॉग आर्टिकल निकालती हूँ फिर पढ़ाती हूँ तुम्हें। मुझे ना मजा नहीं आ रहा आज, तुम लोग पढ़ के नहीं आए ना, मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं मजा? मैडम आप एसएलई शुरू करवाएं, एसएलई सबने पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं होता ना, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, नहीं हमने सारे अभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं तो तुम सबको ही आता है, पता है मुझे, मुझे पता है ये वाला नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने। पढ़ लो इसको बाद में, अब टाइम नहीं है कि नई चीजें अलग से तुम लोग खोल खोल के पढ़ोगे। जो चीज यहाँ से मिल रही है यहाँ पे ही खत्म करके जाओ। समझ आ रही है? जी मैडम। ये पेपर में एक बार एक्यूट किडनी वाला भी आया हुआ है, पता ही होगा तुम लोगों को, डॉक्टर सुरूर वाला एज इट इज आया था। एक मिनट रुको, बस मैं टॉक का आर्टिकल खोल लूं। अब अपने नंबर ऑफ टॉपिक्स पर डे के हिसाब से बढ़ा दो, क्योंकि अब एक एक दो दो टॉपिक से कुछ नहीं होगा। और ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनको हमें करना है और जल्दी जल्दी करना है।
चलो जब तक ये लोड हो रहा है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट हो गई, फिर पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट है आपको पता है उनको हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। आपने ये देखना है कि उसको हाइपरटेंशन है तो कंट्रोल्ड है या नहीं, और किस किस चीज पर कंट्रोल्ड है, ठीक। फिर प्रोटीन यूरिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो आपको पेशेंट की करंट कंट्रोल बताता है और जो है ना उसका प्रोग्नोसिस बताता है कि किस नौयत की इसकी प्रेगनेंसी है, ये हाई रिस्क है या ये लो रिस्क है। देन अंडरलाइंग पैथोलॉजी, ये मैं पहले बता चुकी, रीनल इम्पेयरमेंट की डिग्री के साथ कि क्या चीज है, क्या उसको मसला कौन सा है ना किडनी का, ठीक है। जैसे हमारे वाले पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अलावा पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोपैथीज, पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। एसएलई इज वन ऑफ द थिंग विच कैन लीड टू क्रॉनिक रेनल डिजीज, और बाकी बहुत सारी हैं, स्क्लेरोडर्मा, नोडोजा, ब्ला ब्ला, ठीक है। अब इस जो डिजीज मैंने दी है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें पेशेंट को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, और इसको हाइपरटेंशन भी होती है, क्रोनिक हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाती है आपके पेशेंट। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप नहीं है ना, तो ये लो रिस्क आपकी डिजीज वो हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे कि आपके पेशेंट का बीपी कंट्रोल है, सिर्फ क्रेटिनिन का मसला है। अच्छा, इसके साथ अब रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है पेशेंट को, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया, अनीमिया, एफजीआर, प्रीटर्म डिलीवरी, और रीनल फंक्शन लॉस हो सकता है पेशेंट को, पोस्टमार्टम डिटीरियोरेशन हो सकती है उसके किडनी फंक्शन टेस्ट की, एंड in severe cases it can lead to the end stage renal disease। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है लड़कियों? जी मैम, सामने ये हेडिंग आ रही है। चैट में नहीं पढ़ जी सकती, मुझे बोल के बताया करो प्लीज। जी मैम, नजर आ रहा है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में हम नहीं जा रहे, क्या हो गया इसको? मेरा लैपटॉप मुझे बहुत तंग करता है। ठीक है, ये आउटकम्स मैं आपको बता चुकी, ये मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं आपको। अब इधर आ जाओ, प्री प्रेगनेंसी इसकी काउंसलिंग पे, ये सारी रीनल डिजीजेज जो मैंने मेंशन की, सही। सिग्निफिकेंस, एक तो जीएफआर आपको बताएगा कि पेशेंट का स्टेज बता देगा ना, जीएफआर उसका कितना है, ये आप पूछ लेंगी, ठीक। और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया अलोन, ये दिस इज द इंडिकेटर ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट इन प्रेगनेंसी। तो आपने पूरी प्रेगनेंसी में पेशेंट का प्रोटीन यूरिया के लिए चेक करना है, अगर वो बढ़ा हुआ होगा तो फिर आप बाकी जो है इसके अलावा फिर उसकी क्वांटिफिकेशन पे चली जाएंगी, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो आप करवाएंगी, ठीक है, ये प्रोटीन एस्टिमेशन। अच्छा, इसमें बोला जाता है कि आप प्रोटीन क्रेटिन रेशो कर लो या फिर आप 24 आवर्स प्रोटीन कर लो। क्योंकि हमें पता है कि जो 24 आवर प्रोटीन होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है करवाना, तो फिर आप जो है ना प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो करवा लो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक। उसके बाद फिर ये मेडिकल मैनेजमेंट है जिसमें आपने ड्रग्स चेंज करवानी है इन लाइजन विद हर नेफ्रोलॉजिस्ट। क्यों भाग रहा है ये? और ये आपको ये इंडिकेशंस पता होनी चाहिए डायलिसिस की, ये पूछी जा सकती है स्ट्रक्चर में, ये वाली, ठीक है। अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगर उसको वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ये हो गया उसको, या पल्मोनरी एडिमा हो गया, तो ये चीजें जो है फिर इंडिकेट करेंगी कि आपके पेशेंट को जरूरत है क्या कहते हैं, डायलिसिस की। बड़ा ड्राई टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन 4-5 बातें जो है वो बस काम की हैं, कैसे तुमने मॉनिटर करना है, ठीक है, क्या क्या करना है वो, ये मैं टॉक शेयर कर दूंगी, इसको एक बार मैं हाईलाइटेड वाला तुम लोगों को शेयर करूंगी ताकि पढ़ना ना पड़े खुद से, ठीक है। ये ऑप्स मैनेजमेंट सारी जैसे तुमने बताई है गुलशन वैसे ही होगी, बस आपको ये देखो, प्री टर्म लेबर इज कॉमन, द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल vaginal and urinary tract infection including asymptomatic bacteriuria can be helpful in prevention of preterm labor। तो वो प्रीटर्म लेबर को आप जो है वो ट्रीट कर सकती हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकती हैं अगर पेशेंट को आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा लें। आपके पेशेंट को रिकरेंट ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं जिसके लिए वो एंटीबायोटिक ले रही है, ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, वो रिकरेंट urinary tract infection should be given antibiotic prophylaxis throughout the pregnancy, ठीक हो गया। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ maternal and fetal complications, कुछ भी नहीं है, अगर डिटीरियरेट नहीं है तो आप नियर टर्म लेके जाएं। अर्ली डिलीवरी इज नेसेसरी ओनली फॉर द ऑप्स इंडिकेशन सच एज प्रीक्लेम्शिया, एफजीआर,
और रैपिडली डिटीरिएटिंग मैटरनल यूरिन फंक्शन। ये आपकी बात का जवाब है जब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको डिलीवर कब करेंगे। ऑप्स कंसिडरेशन शुड बी द मेन डिटर्मिनेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। वुमेन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड रिसीव प्रोफाइलैक्टिक हेपरिन इन प्रेगनेंसी एज वेल एज फॉर 6 वीक्स पोस्टपार्टम, जो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ मिलेंगे। इसका भी खैर स्कोर 3 बनेगा। आप थर्ड ट्राइमेस्टर से इसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन कंसीडर कर सकती हैं। और अगर इसको हाइपरटेंशन हुआ या प्रीक्लेम्शिया हुआ, प्रीक्लेम्शिया स्पेशली, तो एक स्कोर और बढ़ जाएगा, फिर तो आप इसको जल्दी देंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज में मोटी मोटी बातें लड़कियों यही थी जो मैंने तुम लोगों को रेफरेंस के साथ दिखा दी और जो पहले मैंने बताई। इसके अलावा जो मैंने क्रोनिक किडनी डिजीज की टाइमिंग ऑफ डिलीवरी और मॉनिटरिंग इन द लेबर बताया ना, उसका जो रेफरेंस है वो है केयर एंड क्या है, एंटीनेटल केयर इन लेबर इन द वुमेन विद मेडिकल कंडीशंस। ये नाइस की गाइडलाइन है। उसमें से उन्होंने, उसमें एक नॉर्मल वाली केयर है स्टेजेस वाइज, एक दूसरी गाइडलाइन है नाइस की जिसमें हर डिजीज के हिसाब से वो लेबर में और मोड ऑफ डिलीवरी की केयर बताते हैं, एंटीनेटल केयर बताते हैं, ठीक है। वो जो दूसरी है ना, उसमें से मैंने ये क्रोनिक किडनी डिजीज का पार्ट जो है तुम लोग को बताया है कि किस स्टेज को किस टर्म तक लेके जाना है, लेबर में कैसे उसको मॉनिटर करना है। उसको मैं तुम लोगों को गाइडलाइन शेयर कर दूंगी। सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पोर्शन जाके तुम लोगों ने देखना है, बस ज्यादा नहीं, वो पूरी नहीं पढ़, ठीक है, ताकि आपको लेबर की मैनेजमेंट पता हो। क्योंकि लेबर की मैनेजमेंट इस टॉग आर्टिकल में नहीं है, बट यस टेक्स्ट बुक में जरूर होगी। आई एम श्योर के ईबीएम या यूएच वगैरह में सारी लिखी हुई होगी। कोई क्वेरी इसमें है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। एक सिनेरियो वाला रह गया। यार इतनी देर ना लगाया करो मुझे जवाब देने में प्लीज। डॉक्टर पलविशा, हेपरिन सिर्फ नेफ्रोटिक में देंगे? क्या कह रही हो? हेपरिन सिर्फ नेफ्रोटिक में देंगे? आप पूरी पेशेंट की जो है ना रीनल असेसमेंट, सॉरी वीटीई की असेसमेंट करोगी, सिर्फ इसमें नहीं दोगे, और भी रिस्क फैक्टर्स होंगे। जैसे ये पेशेंट देखो, इसकी एज देखो, तुम लोगों ने वो स्कोर अगर याद किए हुए होते ना तो तुम लोगों को ये प्रॉब्लम ही ना होती और पूछते भी। इसकी एज है 35 से ज्यादा, तो एक स्कोर तो वो हो गया पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा जो है इस पेशेंट को सिर्फ इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है विच इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ गिविंग लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। हाँ, अगर इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता तो ये स्कोर हो जाता 3, फिर आप देती। लेकिन इस पेशेंट का अगर आप स्कोर कैलकुलेट करो तो इसका एज के हिसाब से बन जाता है इसका 1, ठीक है। बाकी बीएमआई मिलता, पैरिटी मिलती, या इसको प्रीक्लेम्शिया होता तो फिर स्कोर इसका ऐड होता। अभी इसको आप सिर्फ असेस करेंगी, आप लो मोलिकुलर वेट हेपरिन फिलहाल आप इसको सिनेरियो में नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिल जाए तो अल्टीमेटली स्कोर 3 है। फिर आप बाकी रिस्क के लिए उसको देखेंगे। कोई और रिस्क फैक्टर अगर पेशेंट में मिलता है तो वो 4 हो जाएगा। फिर जिसका 4 हो जाएगा उसको तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करा दोगी। अगर अकेला नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई हाइपरटेंशन का मसला नहीं है, तो फिर आप जो है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर से 28 वीक्स। सही है, समझ आई ये बात? जी हाँ जी। हर सिनेरियो के हिसाब से ना वो जो चार्ट होता है ना फौरन से खोल लिया करो, उस पर्टिकुलर डिजीज का स्कोर देख लिया करो। इट्स सेल्फ डॉक्टर पलवशा, अगर नेफ्राइटिस होता है किसी पेशेंट को, चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चाहे ल्यूपस नेफ्राइटिस हो, तो उसका स्कोर 1 नहीं होता है? नहीं, आपके जो डिजीजेस है ना, करंट डिजीज जिसको होगी पेशेंट को, करंट डिजीज, अगर करंट डिजीज में क्या क्या है, ओप्स रिस्क फैक्टर जिसमें प्री इक्लेम्शिया है करंट प्रेगनेंसी में, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, अगर उसका जो है क्या कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी है, ये है करंट रिस्क फैक्टर। जो उसकी नॉन मेडिकल डिसऑर्डर्स है ना, उस मेडिकल कोमोबिटीज में सारी तुम्हें बता देती हूँ। कैंसर, हार्ट फेलियर, एसएलई, एक्टिव वाला एसएलई, इट सेल्फ एसएलई नहीं, अगर एक्टिव है, फ्लेयर है उसको, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी पोली आर्थ्रोपैथी, इंफ्लामेटरी बावल डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस विद नेफ्रोपैथी, अब इसमें टाइप 2 डायबिटीज नहीं आएगी, ठीक है। सिकल सेल डिजीज, करंट आईवी ड्रग यूजर,
These are the medical indications which have score 3. इसमें दोगी तो ठीक है मैडम। समझ आई आसिया? जी मैडम, ये याद करने वाली चीज ये है, इसको मैं याद याद करने वाली करूंगी। चीजें हैं, क्योंकि देखो वहां पे एसएलई भी लिखा हुआ है लेकिन एक्टिव एसएलई लिखा हुआ है, अकेला स्टेबलाइज्ड एसएलई नहीं है। अगर उसके सारे जो एंटीबॉडी जो तुम टाइटर्स करवा रही हो वो नॉर्मल आते हैं तो फिर इंडिकेशन नहीं बनेगी, बस तुम असेस करती रहोगी उस पेशेंट को। और बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स अगर मिल जाते हैं तुम्हें स्कोरिंग वाले, तो फिर कैलकुलेट करके उसका टोटल स्कोर जितना होगा उस हिसाब से तुम दो। जैसे सी मैडम अभी तो खैर हम एसएलई अभी इस वक्त तो एसएलई नहीं करे, लेकिन एसएलई में मैंने पढ़ा था एक जगह के, उसमें लिखा हुआ था कि अगर पेशेंट को जो है वो ल्यूपस नेफ्राइटिस भी है साथ में, वो मतलब उसको एक्टिव हो गया प्रोटीन, ना, ल्यूपस में हाँ चली गई तो वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर गई, फिर तो दोगी। हाँ, फिर उसमें उसको देंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन। जी एक मिनट रुको, मैं सिनेरियो निकाल लूं। डॉक्टर पलवशा, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। ये इस पेशेंट का आप बता रही थी कि क्रिएटिनिन ज्यादा है ना, तो इसको हम बाकी रीनल फंक्शन के असेस करके और फिर मॉनिटरिंग ही करते रहेंगे ना, हाँ अगर बाकी पैरामीटर नॉर्मल आते तो? हाँ हाँ, और आप इन लाइजन विद द नेफ्रोलॉजिस्ट इस पेशेंट को मैनेज करेंगे। और ओके आपको ओके, पता होना थैंक यू। चाहिए कि जो सीवियर इंडिकेशन है क्रेटिनिन कितना उसका क्या कहते हैं ज्यादा हो तो वो एंड स्टेज पे आती है और फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है 500 तक। हाँ, 500 या फिर इसका GFR 10 to 15 पे आ जाए। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। यार मुझे मुझे जो है ना एसएलई का सिनेरियो मैं तुम्हें बता देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि अभी मुझे वो मिल नहीं रहा। मैं गूगल वर्ड ऑनलाइन से जो मैं उसको फाइल को निकाला था, अब मैं तुमको वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, कौन कर रिप्रेजेंट बाय द वे? मैं मैं कर, अरूज। चले अच्छा नहीं, ठीक है, ओके ओके, इट्स फाइन। जी अरूज। जी मैडम, सिनेरियो। हाँ एक मिनट। और बच्चे की दिल की एको भी करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इस तरह के कोई नकायस तो नहीं है अल्ट्रासाउंड पर। और बाद में बच्चे को जल्द पे भी देखेंगे और बच्चे वाले डॉक्टर को भी चेक करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं घर में डिलीवरी करवा सकती हूँ? घर में डिलीवरी आप बेहतर है कि आप जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं, क्योंकि आपको जो बीमारी है उसके अंदर अचानक से पेचीदगी हो सकती है और हमें टीम की तहत काम करना पड़ेगा। गुर्दे वाले डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को शामिल करना पड़ेगा, बच्चे वाले डॉक्टर को भी शामिल करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाएं ताकि किसी भी पेचीदा सूरत में फौरन से हम आपका ख्याल रख सकें। कब डिलीवरी करवाएंगे आप मेरी? हम कोशिश करेंगे कि आपकी हमल आखिर तक लेकर जाएं, 38 से 40 हफ्तों तक लेकर जाएं, अगर कोई पेचीदगी ना हो तो। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, अभी आप पंपलेट ले लें, नंबर ले लें, अगर कोई मसला हो तो आप बताइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके डॉक्टर। मैडम। रूज, आपकी जो हिस्ट्री थी ना, वेरी मच डेफिशिएंट। आपने उससे कोई उसकी पर्सनल हिस्ट्री मजीद नहीं ली पेशेंट की। एलएमपी आपने पूछी और आपने उससे नहीं पूछा वो कितने साल से शादीशुदा है। डू यू नो शी इज मैरिड फॉर 10 years? हम्म, सुन रही हो? जी जी मैडम, सुनिए। हाँ, she was married for 10 years and now she was going to plan her pregnancy. तो आप पूछती तो फिर आपको पता चलता कि क्यों उसने प्रेगनेंसी अब तक नहीं की। देन वो अपने आप को बताती, कंसर्न्स बताती, हर चीज बताती। तो पता नहीं क्यों पिछले 2-3 क्लासेस से तुम लोग
बायोडाटा में ही मिस कर रहे हो चीजें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे तो नहीं बायोडाटा की टेम्पलेट्स बनाई गई। प्लीज खुदारा यार, ये वाली चीजें नहीं मिस करो, ये तो बेसिक है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, हिस्ट्री तुम्हारी जो है ना काफी ज्यादा मिसिंग थी। फ्लेयर का तुमने पूछ लिया था, पर्सनल में क्या लेकिन पर्सनल में क्या देखो मिसिंग था फ्लेयर मैम? का तो तुमने पूछ लिया कि आपको उसने बता दिया। देखो आधी से ज्यादा हिस्ट्री जो है ना इस सिनेरियो में दी हुई है। ये मैंने सिनेरियो बनाया ही इसलिए, इसीलिए इसको मेंशन किया। खैर ये मैंने बनाया नहीं है, सॉरी, ये मैंने प्रैक्टिस बुक से लिया है। तो ये मैंने डाला ही इसलिए, मैं तुम लोगों को ऐसे लिए वो वाला भी दे सकती थी, कुंजी वाला भी दे सकती थी, लेकिन दिस वाज मोर गुड क्योंकि इसमें आधी हिस्ट्री दी हुई है। हमें पता होना चाहिए जब आधी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हो तो हमें उसको काट कर बाकी की रेलिवेंट हिस्ट्री कैसे लेनी है, क्योंकि हमने तो रटी हुई है टेम्पलेट्स के 1 2 3 करके ये पूछना है। उस 1 2 3 में से अगर मुझे दो चीजें सिनेरियो में ही दे दी जाएंगी, अब तो मेरा टूटेगा, सीक्वेंस टूटेगा, तो मुझे परेशानी होगी। तो ये सारी चीजें तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है कि क्या अब पूछना है, अब रह क्या गया, अब छानो अपनी हिस्ट्री को। बायोडाटा मैंने आपको बता दिया, एज हो गया, पैरिटी आपने मिस कर दी, और जो है फिर उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग पहला सवाल ये होता है, वो लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट उसने बता दिया आपको। कंट्रोल आखिरी फ्लेयर वो भी उसने बता दिया, आपको पता चल गया। फिजिशियन को वो रिव्यू करवा रही है, रिपोर्टें उसकी हुई हुई है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री में आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस तो पूछेंगी ना। रिपोर्ट्स तो उसने बता दी कि मैंने सारी रिपोर्टें करवाई हैं, सारी ठीक है, लेकिन आप पेशेंट से अभी करंटली पूछेंगी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या पूछेंगी। सीने में दर्द तो नहीं होता, अब तो नहीं आपको जोड़ों में दर्द होता, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता आपका, आपके गुर्दों के टेस्ट आपके सारे सही हैं, खून आपका पूरा है। ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस आप पहले हिस्ट्री में भी पूछे, बाद में आप रिपोर्टें तो करवाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर गायनी हिस्ट्री, चलो कॉन्ट्रासेप्शन आप पूछेंगी, ठीक है। तो फैमिली में हिस्ट्री कोई उसकी तो नहीं है। अगर उसको पेशेंट को अब खुद को एसएलई है तो इम्पोर्टेंट चीज, उसको कभी वीटीई का इवेंट तो नहीं हुआ, कभी खून जमने वाली कोई बीमारी तो नहीं हुई आपको 6 साल से ये बीमारी है, तो कभी खून जमने का कोई मसला तो नहीं हुआ। दिस इज द हाई रिस्क कि उसको प्रीवियस अगर स्ट्रोक या कोई भी डीवीटी का इवेंट हुआ है। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क? जी 6 साल से जिस सेली है और फिर ल्यूपस नेफ्रोसिस, उसमें तो वीटी का रिस्क है ही है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट था ना सवाल, है ना उरुज? क्या क्या जी कहती हो तुम इस बारे में, हाँ जी 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 है ना? चलो, ये एसएलई तो के साथ हाँ एप्ला जी भी हो सकता है, तो वीटीई का इवेंट तो हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ड्रग्स जी उसने आपको सारी अपनी बता दी जो वो करंटली ले रही है, ठीक। एलर्जी का पूछ लिया आपने, स्मोकिंग, अच्छा जी। उसके बाद टेस्ट हो गए, एग्जामिनेशन कर लें थोड़ा सा प्लीज। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में आपने बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगी, बट आपने ये नहीं बोला कि आप क्या करवाएंगी। आपकी एग्जामिनर्स जो हैं वो खुद से नहीं वो कर सकती हैं ज्यूम कि आप ये एसएलई की ही इन्वेस्टिगेशंस की बात करें। आपने उसके कोई एंटी रो, एंटी ला, एंटीबॉडीज की बात ही नहीं की, डिजीज एक्टिविटी के टाइटर की बात ही नहीं की आपने, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स की बात ही नहीं की आपने। आप वन लाइन में बोलें तो सही ना। इसके जो टेस्ट होते हैं जिसमें एंटी डबल स्मिथ डीएनए, एंटी रो, एंटी ला, जो कि स्पेशली आपकी जो लूपस नेफ्राइटिस डिजीज है इसके लिए हम करवाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेवल्स, फ्लेयर आपको कैसे पता चलेंगे प्रेगनेंसी जी में? कॉम्प्लीमेंट लेवल्स लो हो जाएंगे उसके। तो वो चीजें आपने डिस्कस ही नहीं किया। आपने मैनेजमेंट बड़ी छोटी छोटी सी बताई, जनरल बताई आपने। आपके अब डॉक्टर पलसा जैसे वो बता रही थी पेशेंट के मैंने सारा कुछ कराया ठीक है फिर भी हमने ये अलग अलग से पूछना है। ये मुझे पूछने की बस ये बात नहीं कर कंफ्यूजन रही थी कि मैं। वो सारा आप कराएंगी, आप अब उसके बेसलाइन टेस्ट आप कराएंगी। और जब अगर उसने पूछा, उसने बताया आपको कि मैंने ये टेस्ट कराया, तो कब करवाए? उसने बोला 3 महीने पहले दिखाया था। 3 महीने के बाद आपको नहीं लगता अब आपको, आपके पास वो आई है प्री प्रेगनेंसी, आपको पूरा उसको केयर बतानी है, तो बेसलाइन अभी आप उसकी सारी चीजें करवाएंगी। डॉक्टर पलवशा, ये जो स्क्रीनिंग है इसमें ऑटो एंटीबॉडीज लाइक एंटी न्यूक्लियर और एंटी डीएनए एंटीबॉडीज और एप्ला और फिर एंटी आरओ एंटी एलए और उसके साथ फिर C3 C4 लेवल, तो ये तो इतना लंबा प्रोफाइल। हाँ तो मैडम ये इतना लंबा जो है ये फॉर्मेट है, तो क्या ये हमने पूरा बोलना है इन्वेस्टिगेशंस में? हाँ, आप मांगेंगी इन्वेस्टिगेशन ये सारी।
मतलब इसमें से जैसे जो है वो पेशेंट हम एग्जामिनर से मतलब हम पेशेंट से पहले पूछेंगे कि आपके पास अपनी पुरानी रिपोर्टें हैं और उसमें आपके ये सारे टेस्ट अगर हुए तो आप मुझे बता सकती हैं, और अगर नहीं, और अगर हमें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगे कि मैडम आई वांट टू हैव ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन इफ डन देयर पॉजिटिव फाइंडिंग्स। देखो स्ट्रक्चर्ड में तो आप एक एक करके सारी चीजें मांगोगे, रोल प्लेयर में आप मरीज से पूछोगे कि आपके पेशाब के टेस्ट हुए, आपके दिल का टेस्ट हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, आपका सीने को कभी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो आपके और कोई टेस्ट हुए हैं इसके अलावा। और इस बीमारी के लिए खास तौर पे जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी रो, एंटी ला, 3 तो मैक्सिमम बोलो ना, कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एप्ला की, और कॉम्प्लीमेंट लेवल, जिससे पता चलता है कि आपकी बीमारी कंट्रोल है या नहीं। ये आपके हुए थे? वो बोलेंगी हाँ डॉक्टर हुए थे, सब सही थे। कितना टाइम पहले करवाएं आपने ये टेस्ट? और मैडम जैसे सॉरी, इस पेशेंट की लॉन्ग पास हिस्ट्री है, 10 ईयर से इसने कंसीव भी नहीं कर रही है, और ये मतलब अब इस कंसीव, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी पास में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई होंगी उसमें इसकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी होंगी। तो अब हम बुकिंग पे, जब ये हमारे पास बुकिंग पे आई है तो ये सारे हम टेस्ट प्लस इसका जो है वो करंट रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम इसका यूरिनरी प्रोटीन और यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स और इसका सीबीसी, उसमें सारे प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ये सारा ल्यूकोपिनिया, ये सब, और ओजीटीटी, मतलब ये पूरा कंप्लीट वर्कअप करवाएंगे ना हम इसका, जब भी हमारे पास पूरा फर्स्ट टाइम आई है कंप्लीट पूरा। वर्कअप होगा और पता चलेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन यू विल से हर यस यू कैन एम्बार्क टुवर्ड्स प्रेगनेंसी। हाँ, और इसमें फिर हम इसको ये भी बोलेंगे कि फिर हम प्लान भी करेंगे, तो हम प्लानिंग में इसको बताएंगे कि हम आपकी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे इन लेजन विद योर हेमेटोलॉजिस्ट, या जिससे भी आप, जिस हेमेटोलॉजिस्ट से आप जो है वो मतलब परस्यू कर रही हैं, या जिस नेफ्रोलॉजिस्ट से आप परस्यू कर रही हैं, लाइक जो भी उसकी एक्टिव कंप्लेंट्स थी। अब इसके क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी उस पे आ रही हूँ उरूज, तुम्हारी मैनेजमेंट पर। जी ठीक है, जी वीटी को तो मैंने टच कर लिया, तुम्हें बता दिया, तुमने थ्रू आउट ही वीटी का जो है ना वो करना था। अब इसके बाद ना आपसे मैंने पूछा कि जो दवाइयां मैं ले रही हूँ डॉक्टर ये सेफ है? आपने बोला हाँ जी सेफ है। आपने दवाइयां गौर से सुनी थी उरूज? प्रेडनिसोलोन थी और हाइड्रोक्लोरोक्वीन। हाँ मैडम, इस पे मैं भी कंफ्यूज हुई थी। आसिया, तूने आसिया प्लीज, हाँ उससे बात कर रही हूँ ना मैं अभी। उरूज, ठीक है। अच्छा, इसको चार डायबिटीज का दवाइयां बताना हैं। चाहिए था। आपने 2 रजिस्टर की बस, 4 दवाइयां थी। पहली थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। दूसरी थी प्रेडनिसोलोन। तीसरी क्या थी? कैंडेस। कैंडेसार्टन। कौन सा, क्या है ये? अच्छा, कैंडेसार्टन थी। हाँ जी, क्या है ये, कौन सा ये ग्रुप है? एआरबीज है, एआरबीज है। एआरबीज है, देनी है एआरबीज? नहीं, वो मुझे समझ नहीं लगी तो मैंने पूछना और चाहिए था, अगर समझ नहीं लगी थी तो किस चीज। सिम्वास्टेटिन, स्टेटिन इटसेल्फ सेज, क्या है स्टेटिन? स्टैटिन भी नहीं थी, ये वो है तो रद्दोबदल तो होनी थी ना। कोलेस्ट्रॉल की। हाँ जी जी। ये आपने ये बड़ी गलती करी कि हम्म, ये पेशेंट सेफ्टी में आता है। वो रजिस्टर नहीं की मैंने। हाँ हाँ सही जी, सही। ठीक है। अच्छा, अब फिर अच्छा। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें थी। देखो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में आई है ना, आपने पहले अप्रिशिएट किया उसको, बहुत अच्छा किया। फिर आपने बोला जैसे कि आपकी केस में आपकी डिजीज कंट्रोल है, ठीक है। फिर आपके हम टेस्ट करवाएंगे। आप अभी कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन ले रही हैं, कोई ले रही हैं, आप प्रैक्टिस कर रही हैं कोई कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब मैं आपके पहले टेस्ट करवाऊंगी, फ्ला 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 सारे नॉर्मल आए तो फिर आप जो है अमल कर सकती हैं, आप कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ सकती हैं, ठीक है। उसने फर्टिलिटी का पूछा था, वो आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन आप रिव्यू करेंगी, इम्पोर्टेंट पेशेंट सेफ्टी, एमडीटी आपने कर ली, इस पर डाल दी, वो बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद फोलिक एसिड आपने डाल दी। एंड ऑर्गन असेसमेंट जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो तुम्हें अभी करनी है, बेसलाइन, ठीक है। उसकी डिजीज एक्टिविटी सारी रिपोर्टिंग करवा के, और डिजीज उसकी एक्टिव नहीं थी पिछले 2 साल से, तो मतलब कि आप उसको बोल सकती हैं कि ठीक है, आप आफ्टर द वर्कअप आप अपनी कॉन्ट्रासेप्शन स्टॉप कर सकती हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाओ ऑप्स मैनेजमेंट जो तुम बता रही थी, एमडीटी, फीटल मैटरनल रिस्क,
और ड्रग्स की कंप्लायंस और एस्पिरिन पे डाला, डेटिंग स्कैन, एनोमली स्कैन। 4 वीकली आप सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बुलाओगे, फिर आप 2 वीकली बुलाओगे, और हर विजिट पे आपने करना क्या क्या है गौर से सुनो। इंक्वायर करना है अबाउट द सिम्टम फ्लेयर्स, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन, जो वो ड्रग ले रही है उसकी ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स, और वीटीई की रिस्क असेसमेंट। ये 4 चीजें आपने हर विजिट पे हिस्ट्री से करनी है। बीपी मॉनिटरिंग करनी है, यूरिन एनालिसिस फॉर प्रोटीन यूरिया हर विजिट पे होगा, और सीबीसी, C3, C4 और एंटीरो एंटीला एंटीबॉडीज 4 वीकली करवाएंगी आप। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी इन पेशेंट्स का होता है, ये प्रीक्लेम्शिया FGR के रिस्क पर है ये बंदियां। 20 वीक्स के बाद जो है आप इसका 20 वीक्स पर आप यूट्राइन आर्टरी कराओगे, सीरियल ग्रोथ स्कैन 28 वीक से स्टार्ट कराओगे, 38 पे आप इसका बिशप स्कोर चेक करोगे, SVD का एम करोगे आप, और इस पेशेंट की आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे। ल्यूपस नेफ्राइटिस से रिलेटेड क्या चीजें हैं, VT प्रोफिलैक्सिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे जब पूछा गया बच्चे को नुकसान होगा तो आप सबसे पहले तो आप बताओ ना बच्चे को, मम्मा आपको फ्लेयर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, VT हो सकता है, बच्चे को कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक, जिसका परसेंटेज वो जानना चाहेंगी, एग्जामिनर 2% है, और IUGR हो सकता है बच्चे को। ठीक है, जी उसके बाद इंट्रापार्टम केयर क्या है, आप उसकी एस्पिरिन 48 आवर्स पहले स्टॉप कर देंगी। अगर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ले रही है वो पेशेंट, वो स्टॉप करेंगी इफ इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ सारी चीज। बीपी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फेटा मॉनिटरिंग, हाइड्रोक्सी कोर्टिसोन, अगर आपकी पेशेंट प्रेडनिसोलोन ले रही है इसको स्ट्रेस डोज इंडिकेटेड है। ठीक है, थर्ड स्टेज को एक्टिवली मैनेज करोगी, और न्यूरोलॉजिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट देयर। 1-to-1 पेशेंट को केयर देनी है। पोस्टमार्टम में फिर इमीडिएटली अगर वो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ले रही थी तो वो प्रोटोकॉल बताओगी, VT रिस्क असेसमेंट दोबारा करोगी, ब्रेस्ट फीडिंग बताएंगी। प्रेडनिसोलोन वाली पेशेंट जो है वो दवाई लेने के 4 घंटे के बाद बेबी को फीड कराती है। कॉन्ट्रासेप्शन, ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्शन आप अवॉइड करेंगी इन पेशेंट्स में, VT का रिस्क होता है। और फ्लेयर के लिए भी पोस्टमार्टम विजिलेंटली मॉनिटर करेंगी क्योंकि पोस्टमार्टम का रिस्क होता है, और दोबारा से डिस्चार्ज करने से पहले इसकी MDT का रिव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आप इस पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। समझ आई उरूज? जी जी मैडम। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना आपकी पूरी थ्रू आउट द ऑप्स मैनेजमेंट। पहली बात, डिजीज को का कंट्रोल के लिए आपने मेजर्स लेनी है, और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपने मेजर्स लेने, टेस्ट करने। अब हिस्ट्री उसको कैसे असेस करोगी, हर एंटीनेटल विजिट पे हिस्ट्री हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी। इसके अलावा बेबी के लिए आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराओगी 20 पर, उसके बाद आप सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराओगी 28 वीक से। ये बच्चे के लिए चल रही है सारी चीज, ठीक है ना। एस्पिरिन को ले रही है, पॉलिसिन ले रही होगी, और दवाइयां तो तुम इम्पोर्टेंटली जैसे ही वो आएगी, बल्कि अभी प्री प्रेगनेंसी में ही तुम उसकी दवाइयां चेंज कर दो। मैडम मुझे एक बात इसमें से कंफ्यूजन है, उसको पूछना था कि जो है वो प्रेडनिसोलोन इसमें हम लो डोज में ही देते हैं, 5 to 20 से ज्यादा हम नहीं दे सकते ना, और उसको 6 to 12 वीक्स में स्टॉप करेंगे ना प्रेडनिसोलोन, जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड है। नहीं, देयर इज नो सच प्रोटोकॉल। मतलब कंटिन्यू रखेंगे हम, अगर पेशेंट प्रेडनिसोलोन लो डोज पे है तो हम उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखेंगे SLE में। बस आप मम्मा का BP और ब्लड शुगर ये चीजें मॉनिटर करते रहेंगे। अच्छा, और मैडम दूसरी बात ये कि जो है वो जो पेशेंट उसको प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है, जैसे ये पेशेंट है अगर इसको प्रीवियसली ल्यूपस नेफ्राइटिस के अटैक्स हुए हैं और इसके प्रीवियस जो है वो प्रोटीन रीनल फंक्शन डिरेंज रहे हैं, और अगर अभी इसको इन केस जो है एक्टिव नेफ्राइटिस होता है तो उसमें तो इंडिकेटेड है कि फिर एनसेट्स नहीं देते हैं ना ऐसे पेशेंट में, फिर आप ओपॉइड्स या पैरासिटामोल देते हैं अगर इनको पेन का फ्लेयर होता है तो। एनसेड्स इनको नहीं देने होते हैं। आप स्टार्ट पैरासीटामोल से करते हो डिपेंडिंग अपॉन पेन सिवियरिटी। पहले पेन का स्केल आप स्कोर करते हो, उसके हिसाब से फिर आप जो है स्कोर वाइज आप देखते हो। डायरेक्ट ओपियोइड इंडिकेटेड नहीं है, आप पहले देखो तो सही उसका पेन का स्केल क्या है। हाँ, मतलब अगर पेन इंटेंसिटी है तो फिर आप ओपॉइड ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको बेबी को भी, अगर पेशेंट ने लिया है ओपॉइड तो फिर बेबी को भी वॉच करते हैं विथड्रॉवल सिम्टम्स के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर पलविशा, जैसे इन्वेस्टिगेशन थी तो अगर मैं उसको कहती मतलब मैं ये एग्जामिनर से मांगनी थी मैंने? नहीं, आप जब हिस्ट्री ले रही हो ना तो आपने हिस्ट्री में मेक श्योर करना है कि बंदी की डिजीज कंट्रोल है और बंदी के सारे पूरी बॉडी के एंड ऑर्गन इवेलुएशन हुई है।
आप उससे बोलेंगी ये जो आपकी एंटी बीमारी, रोला वाली है, हाँ जी, आप नाम बाकी तो ले वो लो, हो गया। कॉम्प्लीमेंट अच्छा लेवल्स, एंटी रो एंटी ला, ये दो ही आप नाम ले लो कि इस बीमारी के जो अगर टेस्ट होते हैं एंटीबॉडीज के, एंटीरो एंटीला और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स के जो होते हैं, वो आपके हुए थे, वो आपके कंट्रोल थे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके वो लेवल्स ठीक हैं। इसके अलावा आपके दिल के टेस्ट, आपके जिगर के टेस्ट, आपके गुर्दे के टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाए हुए हैं आपके डॉक्टर ने, वो ठीक है। ये आप हिस्ट्री में पूछ रहे हो। पेशेंट विल टेल यू जी डॉक्टर साहब ये हुए हैं। अच्छा, हुए हैं, कब हुए हैं, कितने पुराने हैं, अब ये भी तुम्हें देखना है। अगर 6 महीने से ज्यादा पुराने फिर तो तुम मस्ट कराओगी, ठीक ठीक है ना, क्योंकि और फ्लेयर वो का उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने वो कार्डिक और ल्यूपस उसका होना बताना था। चाहिए, देन शी कैन एम्बार्क टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी। ठीक। अब पूछो रूथ जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाली, क्या कह रही थी आप? जी नहीं, यही पूछ रही थी, बस ओके क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना, ये मैं भूल गई, कल भी किसी, मुझे नाम याद नहीं है किसकी प्रेजेंटेशन थी, और आज भी जब पेशेंट बोल रही होती है ना,